हेलो एवरीवन। प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला शुरू है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 जस्ट प्रीवियस डे पे अपलोड कर दिए हैं वीडियोस फॉर यू ऑल। आई होप यू ऑल हैव प्रैक्टिस्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। गाइज, May 22 इज अ वेरी क्रूशियल अटेम्प्ट। आप सभी की एग्जामिनेशन लीव अभी अभी हुई है। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन आंसर्स इज utmost important for this examination. So looking into that requirement, मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स फ्री प्रैक्टिस बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया है। स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन आंसर्स इज ऑलरेडी अपलोडेड। उसके बाद वी एडेड पार्ट 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, पार्ट 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, एंड टुडे फाइनली वी आर गोइंग टू डू पार्ट 3 ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन आंसर्स। ये वाले जो पार्ट 3 में हम लोग कुछ इस प्रकार के चैप्टर्स देखने वाले हैं, जहाँ पे वी विल बी कवरिंग इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आई एम गोइंग टू टेक फॉर यू ऑल। एंड हाँ गाइज, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 22 ऑनवर्ड्स है, नवंबर 22 या May 23, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द प्लस बैच एज वेल एज द आइकॉनिक बैच फॉर यू ऑल। आइकॉनिक बैच में गाइज, आई एम पर्सनली टेलिंग यू ऑल दैट this is the very best option. This is a flagship program which we have launched for you. Iconic program में other than live classes, you will also get an additional benefit of premium recorded content. तो live जैसे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते थे वो तो है ही है। On top of that, the premium recorded content, something like this, animated content आपको मिलने वाले हैं। So key codes, animations, theory will not be boring anymore. And हाँ जी guys, ये जो premium recorded content है, इसका accessibility is along with the live classes. तो ये मिलने वाला है as well as premium recorded content भी मिलने वाला है। Additionally, you will also get the physical copies of the books, जैसे कि सार है, सवाल है, ये सारी physical copy of the books मिलने वाली है। Test series, evaluated test series मिलने वाली है। So select your batch plan accordingly. Every day I'm having live session morning at 9:45 a.m. on Unacademy platform. ठीक है? So for your November 22 we are all set. If you want to subscribe, you can just take up the subscription by using the code ORITSAR. चलिए अभी हम लोग शुरू कर देते हैं पार्ट 3 of this current practice batch. चलिए अब शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एज वी ऑल हैव स्टडीड दिस, इंश्योरेंस वाले चैप्टर में बच्चों दो इंश्योरेंस के क्वेश्चन है। एक है लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन और एक है जनरल इंश्योरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन, लाइफ एंड जनरल। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन। TNT Limited is engaged in the life insurance business. The company's operation have been considerable in the northern India and its head office is also based New Delhi. Okay. TNT Limited, while preparing the financial statements, have classified the administrative expenses under 14 heads. Very good. As mentioned in the Schedule 3, forming part of the financial statements given under Schedule A to IRDA Regulations 2002. Now the question begins. What is your responsibility as an auditor, particularly in relation to administrative or the expenses of the management? So frankly speaking, being an auditor, we have to check appropriate allocations. We have to check क्या equitable grounds, justifiable grounds है for the apportionments of the expenses or not. So जो 14 heads के अंदर expenses classify हो रहे हैं, divide हो रहे हैं, whether that is appropriate or not. बस इतना ही तो आंसर लिखना है। एंड हाँ, मटेरियल एक्सपेंसेस है जैसे कि 5 लाख या 1% ऑफ द प्रीमियम, जो मटेरियल एक्सपेंसेस है वेदर दे आर शोन सेपरेटली। ठीक है, सो ऑल द मेजर एक्सपेंसेस 5 lakhs और इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द प्रीमियम विच एवर इज हायर आर शोन सेपरेटली. You need to check the apportionments, whether they are based on a reasonable and equitable ground, whether the accounting policies actually clearly indicates the criteria for apportionments of the expenses. ठीक है, and any expenses which are covered, which are actually not covered under these 14 heads, should be mentioned as other expenses under the head others. Okay, very recently asked January 21 question. Next, Cab Insurance Limited was incorporated in 1st July 2020. Company is mainly in the areas of health insurance and planning to expand in other fields of general insurance. You have been appointed as Chief Financial Officer of the company. The company has made investments as per the guidelines in the real estate investments. Now the real question starts.
बोलता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन द इक्विटी, ऑल्सो इन इक्विटी, सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि आप जरा बताइए तो सही कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन द रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, उसको वैल्यू कैसे किया जाए। सो अगर हमने ये से फॉर एग्जांपल हम भूल भी गए, मुझे नहीं याद आ रहा है ये क्वेश्चन कि इंश्योरेंस में कैसे हो। नॉर्मली स्पीकिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, कैसे वैल्यू होता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वैल्यू करेंगे। डेरिवेटिव्स है तो कैसे वैल्यू होगा? ट्रेडिंग पर्पस है तो फेयर वैल्यू करेंगे। बस इतना आंसर्स भी आप अकाउंटिंग पर्पस लिख करके आओगे ना, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो लुक एट द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आपको एक्यूरेट आंसर आ ही रहा है तो वेरी गुड, राइट दैट। इफ इट ऑल यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कि यार इन्वेस्टमेंट कहाँ था इंश्योरेंस कंपनी में, हाउ डू दे वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स, ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा जनरलाइज करके दिमाग लगाएंगे कि हाउ इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली वेरीफाइड या फिर यूजुअली वैल्यूड फॉर अदर बिजनेसेस, द सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, सो या फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर रीवैल्यूएशन लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है, उसको भी माइनस करेंगे। देन हम लोग बोलेंगे इंश्योरर शैल असेस एट द बैलेंस शीट डेट एनी काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो इमीडिएटली पीएनएल में, एक्सपेंसेस रेवेन्यू पीएनएल में इमीडिएटली चार्ज कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन है। ये मेरे हिसाब से हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। क्या है समझो। एज ऑन 31st of March 20, while auditing Safe Insurance Limited, you observe that the policy has been issued on 25th of March 20 for fire insurance for fire risk favoring one of the leading corporate houses। मतलब मैंने आई एम इंश्योरेंस कंपनी, मैंने कोई लीडिंग कॉर्पोरेट हाउसेस को इंश्योरेंस पॉलिसी दे करके रखा है 25 मार्च को। किस चीज़ के लिए? फायर सेफ्टी के लिए। बट हुआ क्या, मुझे एक्चुअली इनका प्रीमियम मिला नहीं था, मैंने प्रीमियम रिसीवेबल करके ये पॉलिसी इशू कर दी। बिकॉज ये बहुत बड़ा कस्टमर है, बड़ा क्लाइंट है, मैं ज़्यादा पैसा नहीं करती, मुझे पता है कि यार ये पैसा आने ही वाला है। और हुआ क्या, 5th of April को देयर वॉज अनफॉर्चुनेट फायर एक्सीडेंट हैपनिंग इन द प्रीमाइसेस ऑफ दैट बिग कॉर्पोरेट हाउस। अब उन्होंने क्लेम लॉन्च किया। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे दैट क्लेम? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नो प्रीमियम नो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हमको पॉलिसी का प्रीमियम नहीं मिला है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रिस्क। नो प्रीमियम नो रिस्क। इन दिस पर्टिकुलर केस आप प्रीमियम रिसीवेबल के नाम पे कोई क्लेम लॉन्च नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज 64VB। No risk can be assumed unless the premium is received. In the given case, according to section 64VB, no insurer shall assume the risk in India. जो भी मतलब I cannot give any claim, I cannot pay out any claim in India or outside India जिसका अमाउंट अक्रूव्ड है बट मिला नहीं है। अगर प्रीमियम नहीं मिला है, कोई इंश्योरेंस का हिस्सा मुझे नहीं मिला है, मैं रिस्क क्लेम लॉन्च नहीं करूँगी। सो द कंपनी इज very well not liable or there is no requirement to make a provision for such claim। यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, एग्जैक्टली सेम स्टडी मैट में भी दिया था, आरटीपी May 21 में आया हुआ है। बिकॉज ये सेम है, ये आज का आपका होमवर्क। यूजुअल प्रैक्टिस, बिग क्लेम, प्रीमियम नहीं मिला, एक्चुअल रिसीट ऑफ द प्रीमियम, सेम क्वेश्चन। ओके, इसके बाद आता है December 21 का दिया हुआ क्वेश्चन। अगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन। CAM has been appointed as an auditor of Life Secure Insurance Limited. He observed that few insurance policy have been sold by the company in last months of the financial year ending 31st of March 21. While recognizing the income in the income statements of the company, it is the responsibility of CAM to make the assessment of the reasonability of the risk pattern managed by the management. Okay. सब प्रवचन है। Also, it is to be ensured that by him that Life Secure Insurance Limited should not issue any policy if risk is not established before the closure of the financial year। मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये सब प्रवचन क्या क्वेश्चन कह रहा है? इंडिकेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन द कंपनी डिड नॉट इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आप खुद ही दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेंगे। पहली बात, पैसा नहीं मिला, प्रीमियम।
प्रीमियम नहीं मिला है, पार्ट प्रीमियम मिला है, चेक डिसऑनर हो गया है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर मिसिंग है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशंस है वो मिसिंग है, जो डेटा हमें मिला है वो थोड़ा सा फॉर्ज लग रहा है, तो इन दिस फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट इशू अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. Yes or no? So premium is not collected. Relevant check has been dishonored. Premium immediately not collected. बैंक गारंटी जो इन्होंने दिया था वो सारा नहीं हुआ है. प्रीमियम हैड नॉट बीन कलेक्टेड ड्यू टू रिस्क. बेसिकली हम लोगों को जो रिस्क कवर मिल रहा है उसका प्रीमियम पार्ट प्रीमियम मिल रहा है. जैसे कि मैंने आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा एंड आपको प्रीमियम भरना था 15,000 रुपये, बट जब भी एजेंट की बात चल रही थी तभी आपसे बात चल रही थी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉर्म्स, रूल्स एंड एक्चुअल एंड पॉलिसी कि भाई साहब आपका तो 12,000 में चल जाएगा, ये पॉलिसी मिल जाएगी. तो आपने क्या किया, मुझे 12,000 रुपये दे दिए, बट जिस टाइप का रिस्क कवर चाहिए आपको उसके लिए 15,000 का प्रीमियम भरना था. देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रीमियम. सो उसके कारण भी ये देखो, उसके कारण भी हम लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं इशू करेंगे. इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रीमियम हैव नॉट बीन कलेक्टेड इन टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ पॉलिसीज, जैसे कि मरीन कम इरेक्शंस पॉलिसीज. तो ये सारा चीज़ हमको नहीं मिला. मेजरली क्या होता है, प्रीमियम नहीं मिला, हम लोग रिस्क रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेंगे. प्रीमियम कलेक्टेड बट पॉलिसी नॉट इशूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये वाला पॉइंट क्या है समझो जरा. बोलते हैं प्रीमियम कलेक्ट तो हुआ बट काफ़ी टाइम से हम लोगों ने पॉलिसी इशू ही नहीं की. अगर काफ़ी टाइम से हम लोगों ने पॉलिसी इशू ही नहीं की है सो बॉस कुछ तो गड़बड़ है डॉक्यूमेंटेशन में, सिग्नेचर में, वेरिफिकेशन में. देयर इज समथिंग which is making the insurance company to put this insurance policy on hold in abeyance. Question number 5, next one. You are the auditor of Good Luck Insurance Company. You want to ensure that there exists a good system of that effectively serves the requirement of true and fair accounting claims. Suggest how this can be done. बोलता है कि आपको ये जानना है कि जो क्लेम्स है, जो प्रोविजंस है वो सही है या नहीं है. सो हाउ विल यू डू दैट. फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोगों ने जो एरियाज पढ़े थे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस के केस में, तो हम लोग क्लेम और प्रोविजन को कैसे वाउच और वेरीफाई करेंगे उसका आंसर लिखना है. सो ऑडिटर को चेक करना है कि डिवीजन, ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग ईयर एंड प्रोविजन कितने का किया है, कोई अनसेटल्ड क्लेम है क्या, क्लेम कब लॉन्च हुआ है, इनिशियल डिफॉल्ट. तो ये सारा चीज़ क्या है पता है, दीज ऑल स्टफ्स आर विथ रिगार्ड्स टू, यहाँ पे ज़रा जा करके देखिए क्लेम्स को कैसे वेरीफाई करेंगे, वो वाला आंसर है. दिस इज प्रीमियम क्लेम प्रोविजन. सो दिस इज द आंसर. 64 VB. मैम तो इतना बड़ा आंसर लिखना है क्या हम लोगों को, हर बार ऐसा 20-20, 25-25 पॉइंट्स लिखने. आंसर इज नहीं स्टूडेंट्स. व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स यू कैन वेरी वेल राइट द स्ट्रॉन्ग 5 to 6 पॉइंट्स एंड दैट इज इट. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो सेम. फायर वाला है. नो इंश्योरेंस, नो प्रीमियम, नो रिस्क. नो प्रीमियम, नो रिस्क. Next, you have been appointed as an auditor of ABC Insurance Company Limited. Found that Messrs PQR Limited got their plants and machinery insured on 1st October 2018, but the amount of premium has been paid on 15th of October. 1st October, 15th of October. Meanwhile 10 अक्टूबर को फायर हो गया. पॉलिसी 1 को दे दी, प्रीमियम 15 को मिला और बीच में ओ माय गॉड 10 तारीख को फायर हो गया. क्या ये फायर का क्लेम हम एंटरटेन करेंगे? नहीं करेंगे. नेक्स्ट, हाउ विल यू वेरीफाई. सेम पॉइंट है. एंश्योर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर टू वेरीफाई द क्लेम प्रोविजन. क्लेम प्रोविजन फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कैसे करेंगे वो चीज़ सेम टू सेम क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि जिस हिसाब से आरटीपी में आ गया है ना, पहले भी मैंने आरटीपी का क्वेश्चन बताया, अभी भी आरटीपी में आया है. Very high chances that they can ask you a question with regards to the claim provision. What you need to verify is whether the provision is made for all the claims. IBR, IBN, ER वाला provisions आपको देखना है. Incurred but not registered but not enough recorded. ठीक है. सो ये सारा चीज़ का लीगल लायबिलिटी का प्रोविजन, आर्बिट्रेशन वैल्यू, क्लेम का स्टेटस क्या है, लीगल एडवाइजेस देना,
सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गारंटी, सैल्वेजेस, ये सारा चीज़ वेरीफाई करना। ऑन अकाउंट पेमेंट किया है क्या? So important 6 to 7 points and you are done. Okay, next, what are the steps to be taken while verifying the premium of general insurance policy and life insurance policy? ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। प्रीमियम को चेक करने के लिए, प्रीमियम इनकम को चेक करने के लिए, और जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, आप क्या चेक करोगे? ये है जनरल इंश्योरेंस वाले पॉइंट। लाइफ इंश्योरेंस वाले पॉइंट आगे दिए हुए हैं आपको ऑडिट सार में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल इंश्योरेंस, हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि प्रीमियम विच इज कलेक्टेड इज एज पर आरबीआई रेट, जीएसटी क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ओवर द रिकॉग्निशन, रिसिप्ट ऑफ द मनी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे किया जा रहा है, पीरियोडिक रिसिप्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैंसिलेशन, refunds, understand the overall system and the architect of the data flow कि कौन कैसे डेटा एंट्री पास कर रहा है, how the reports are generated, bank guarantees, so GST whether that is received from the policy holder, तो ये आपको देखना है, चेक करना है for the premium for general insurance company and premium for life insurance company, that is a बड़ा वाला पॉइंट। ठीक है, प्रीमियम में 6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे। या हियर collection of the premium, calculation of the premium, recognition of the income, एडवांस प्रीमियम मिला है तो क्या करेंगे, IRDA को और मैनेजमेंट को फिगर्स शो करना एंड अदर्स। सो लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम चेक करने में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जनरल इंश्योरेंस में आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन के पॉइंट्स लिखने हैं। IT सिस्टम, प्रीमियम हैज़ बीन कलेक्टेड और नॉट, डिसऑनर तो नहीं हुआ है, प्रीमियम रिस्क, क्लेम्स क्या लॉन्च है, को इंश्योरेंस का हिस्सा मिला है कि नहीं, जीएसटी, बैंक गारंटीज, पॉलिसी होल्डर को जो पैसा मिला है क्विकली पॉसिबल है तो उसका डेटा वगैरह स्टोर करके रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव बीन अपॉइंटेड टू कैरी आउट द ऑडिट ऑफ ब्लू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 1920. In the course of your audit, you observed that the commission paid to the agents constituted the major expenses had to be expenses in the operating expenses of the company. Enumerate the audit concerns that address to the assertion required for the auditor to ensure continued existence of internal control as well as the fairness of the amount in accounting the commission paid to the agents. कमीशन पेड टू द एजेंट्स के लिए क्या क्या वेरीफाई करेंगे? वेयर इज दिस आंसर? कमीशन और ब्रोकरेज पेड टू द एजेंट, तो खाली उन्हीं एजेंट्स को पैसा मिल रहा है जो कंपनी के रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स में है। जो रेट पे कमीशन मिल रहा है या ब्रोकरेज मिल रहा है दैट इज एज स्पेसिफाइड बाय IRDA। जो भी ब्लैक लिस्टेड एजेंट्स है उनको पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा सिर्फ और सिर्फ सॉलिसिटेशन बिजनेस के लिए मिल रहा है, सॉलिसिटेशन बिजनेस के लिए मिल रहा है। रेट प्रिस्क्राइब है, ब्लैक लिस्टेड को नहीं मिल रहा है, लिमिट्स के विद इन है। कंपनी शुड पे कमीशन और ब्रोकरेज ओनली टू द एजेंट्स एंड नॉट टू एनीवन एल्स। रजिस्टर ऑफ एजेंट्स वेरीफाई कर लो। कमीशन का आउटगो एक्चुअली रियम्बर्समेंट बैंक से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये वेरीफाई करना है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? कमीशन पे टू द एजेंट्स, तो जीएसटी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर इन लिमिट्स, रेट्स, सॉलिसिटेशन बिजनेस, नॉट ब्लैक लिस्टेड, डिसबर्समेंट वाउचर्स चेक करना। हाँ, ये वाला पॉइंट भी अच्छा वाला पॉइंट है क्योंकि ये इनकम है फॉर एजेंट्स, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है। स्क्रूटिनाइज लेजर्स, एजेंट रजिस्टर, एजेंट लेजर्स एंड कमीशन आउटगो जो भी हुआ है वेदर दैट इज ड्यूली अकाउंटेड फॉर। Next, auditor's consideration while reviewing of the investment department of life insurance अभी ये देखो, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस मतलब ऑडिट सार में तो एंड में दिया हुआ पॉइंट। और देखो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी सारा चीज़ें था जो हम लोगों को चेक करना था। पॉलिसी सरेंडर, इसके बाद था हमारा इन्वेस्टमेंट्स, क्लेम्स, हियर यू गो। सो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें। सबसे पहले तो वो देखना है कि इन्वेस्टमेंट कौन से फंड से हुआ है, पॉलिसी होल्डर फंड या शेयर होल्डर्स फंड।
इन्वेस्टमेंट जब भी कर रहे हैं दैट इज एज पर द नॉर्म्स, IRDA ने जो नॉर्म्स दे करके रखे कि कौन से कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग कैसे करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डेस्क, देखो फ्रंट ऑफिस, बैक एंड ऑफिस, डीलिंग ऑफिस, तो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करिए तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए देर आर पर्सन हु टेक अ कॉल कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, देर आर पर्सन हु एक्चुअली एग्जीक्यूट्स इट, देर आर पर्सन हु अकाउंट्स इट. सो ये सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एज एन ऑडिटर व्हाट यू नीड टू चेक इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी चेक करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस वेरीफाई करना है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई कर लेनी है, मिनट्स, स्कोप एंड मिनट्स ऑफ द कमिटीज, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कमिटीज वेरीफाई करनी है, whether there is a compliances with all the regulations specified by IRDAI, disaster recovery, backup, continuity plans क्या है, investable surplus कितना है, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, automatically monitor, ensure that the system is able to automatically monitor the regulatory limits, क्या रेटिंग्स पे कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है. ऑल्सो जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करें वी नीड टू वेरीफाई द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट्स. खाली रिस्क के बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. NAV का कंपटीशन, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, ये रिस्क को इवेल्युएट करना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर द रोल ऑफ एन ऑडिटर व्हेन ही इज वेरीफाइंग द इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. दिस इज एन RTP November 19 का क्वेश्चन. सेम NAV competition, market risk, investment policies, split between shareholders fund, policy holders fund. ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखा है गाइज. आई होप यू ऑल आर एबल टू रिकॉल इट. ठीक है, ईच एंड एवरी बातों पे, ईच एंड एवरी पॉइंटर्स पे बहुत ही डीप डिटेल चर्चा हो चुकी है. योर ऑडिट असिस्टेंट सीक्स योर हेल्प इन चेकिंग द क्लेम लायबिलिटी ऑफ भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड and wants to know what are the registers and the records he should obtain in order to review in this regards. Which regards? Claim. Okay, तो क्लेम के लिए कौन से रजिस्टर्स बनाने होते हैं? 6 रजिस्टर्स हम लोगों ने बात की थी कि क्लेम्स के लिए कुछ 6 रजिस्टर्स है जो आपको बनाने हैं, कंपनी को मेंटेन करने हैं और ऑडिटर को चेक करना है. कौन सा है वो लोग? So following registers or the records are required to be prepared for claims. पहला इंटीमेशन रजिस्टर, क्लेम पेड रजिस्टर्स, डिसबर्समेंट रजिस्टर्स, डॉकेट रजिस्टर, सैल्वेज रजिस्टर, क्वालिटी इंश्योरेंस टीम का रजिस्टर. ठीक है, तो ऐसे 6 रजिस्टर्स है जो आपको चेक करने हैं. यू नीड टू वेरीफाई इन दिस रिगार्ड्स. इंटीमेशन, पेड, डिसबर्समेंट, डॉकेट, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड सैल्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Mr. Bhavya is appointed as an auditor of General Insurance Company Limited. State the verification procedure to be followed by Mr. Bhavya in case of outstanding premium and agent balances. मतलब अगर हमको पहले तो प्रीमियम नहीं मिला है और आउटस्टैंडिंग एजेंट बैलेंसेस को पैसा नहीं दिया तो एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग. इनकम आउटस्टैंडिंग है और मतलब रिसीवेबल है और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ये हम लोगों ने, ये रहा क्लेम पेड. When we talk about जहाँ पे हमको लगता है कि देर आर इनकम्स एक्सपेंडिचर जो आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करेंगे कि भाई इतना बड़ा अमाउंट क्यों अनपेड है, क्यों अब तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है. जहाँ पे हम लोगों को पेमेंट करना चाहिए था, लॉन्ग टर्म से ये चीज़ पेंडिंग है, तो व्हाट इज इट, वाई इज इट सो, रीजन्स फॉर होल्डिंग द लॉन्ग लाइक ओल्ड बैलेंसेस. Scrutinize the control account, treatment of the old balances, sector wise, age wise, outstanding premium को categorize करो. Verify whether the outstanding premium has been collected or not. Check the availability of adequate bank guarantees, premium depositors. अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो हो सकता है कोई बैंक गारंटी मिली हो, आपने कोई पॉलिसी ली हो मेरे पास और आपको ना आपने बैंक गारंटी मुझे दे करके रखा है कि मैम अगर मैं साल भर में 1.5 लाख रुपए नहीं दे पाई तो ये बैंक मेरे लिए गारंटी ले रहा है कि 1.5 लाख रुपए भरेगा. तो चेक, अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो बैंक गारंटी है क्या सामने. सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू वेरीफाई.
दिस विल बी इन बैलेंस शीट आइटम्स। ये क्या आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, ये यहाँ पे है इसका। कंट्रोल अकाउंट चेक करो, इनऑपरेटिव बैलेंसेस चेक करो, ओल्ड बैलेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है, व्हाट आर द रीजंस फॉर रिटेनिंग दिस ओल्ड बैलेंसेस, एडिक्वेट बैंक गारंटी, एज वाइज, सेक्टर वाइज आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, ह्यूज आउटस्टैंडिंग एजेंट बैलेंसेस है तो रीजंस पूछो, ठीक है, कि ये क्यों एडजस्ट नहीं किया गया है। अगर आपको लगता है कि पैसा नहीं मिलने वाला है तो अब तक क्यों होल्ड करके रखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, while auditing secure insurance, you observe that major proportion of the expenses of the company is remuneration to the agents. How would you verify commission paid to agents? ये अभी पढ़ा commission paid to agents में rates, limits, outstanding, blacklisted, जहाँ पे solvency, only payment to the registered agents, TDS, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। राइट इट सेम, ये सेम क्वेश्चन है। प्रीमियम पे, सॉरी नॉट प्रीमियम, कमीशन पेड टू एजेंट्स या ब्रोकरेज पेड टू एजेंट्स, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन। हाउ वुड यू वेरीफाई एजेंट बैलेंसेस? ये आउटस्टैंडिंग एजेंट बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करेंगे? आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड द एजेंट बैलेंसेस, स्टडी मैट का क्वेश्चन जो अभी पढ़ करके आए वो। हाउ वुड यू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट्स for life insurance policy? This is also same and this is your homework too. Next, Girnar is appointed as the auditor of CA Girnar is appointed as the auditor of National Insurance Company Limited. State the verification procedure to be followed by Mr. Girnar in case of reinsurance outwards. अब ये reinsurance वाला केस आ गया भाई, ये है reinsurance। अब री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स के केस में आपको क्या वेरीफाई करना है? तो ऑडिटर शुड वेरीफाई अंडरराइटिंग रिटर्न्स, पैटर्न इन द कैटेगरी ऑफ द रिस्क विच इज सीडेड, परसेंटेज ऑफ द सीजेशन ऑफ द प्रीमियम, कमीशन कितना पे हुआ है, रिसीव हुआ है। थोड़ा एनालिटिक्स कर लो कि कितना है री इंश्योरेंस जो आपने सीड करके रखा है, मतलब दे दिया है। इवेंट्स विच आर अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कन्फर्मेशन वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या है, कैश लॉस हुआ है क्या, फॉरेक्स रेगुलेशंस, प्रोविजंस एंड एग्रीमेंट्स, ये आपको वेरीफाई करना है इन केस ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स। अंडरराइटिंग, पैटर्न, सीजेशन, जो जितना आपने अमाउंट सीज किया है, आउटवर्ड रेमिटेंस कितना है टू द फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी, कैश लॉसेस, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, मेजर क्लेम्स, परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज पैटर्न ऑफ नेट प्रीमियम, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना, एनी अकाउंट जहाँ पे आपको लगता है कि प्रोविजनिंग करना है, राइट ऑफ करना है अमाउंट, वो वेरीफाई करना। सो व्हाट इज दिस? तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? री इंश्योरेंस आउटवर्ड्स। नेक्स्ट, एन्यूमरेट द स्टेप्स टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर फॉर वेरीफाइंग री इंश्योरेंस आउटवर्ड। सेम पॉइंट for general insurance company. So while teaching you this chapter, मैंने आपको ये बोला था जो कंसेप्ट आपको डायरेक्टली याद नहीं आता ना कि जनरल के लिए क्या था, लाइफ के लिए क्या था, जो एक भी आंसर आपको याद है ना, आप प्रीमियम, एजेंट बैलेंसेस, री इंश्योरेंस, रोल ऑफ एन ऑडिटर विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा चीज़ ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा सा कॉमन है। अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ना कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या था और जनरल इंश्योरेंस के लिए क्या था, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। जो याद आ रहा है, जिसका भी आंसर याद आ रहा है, यू राइट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाई लाइफ इंश्योरेंस इज इनटू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस and has established presence in the field since last 25 years. Your firm, SRN Company, are appointed auditors of High Life Insurance Company. While conducting its audit, you come across several important actuarial process being followed in accordance with the general regulatory requirements. You also understand and realize that actuarial development department is calculating and modeling hub of the company. Obviously ना, for insurance company the actuarial department is a main hub, क्योंकि वही है जो policy modeling,
सॉल्वेंसी, रिस्क अंडरराइट करना है कि नहीं करना है, क्या पॉलिसी फ्रेम करना है, इन सब के बारे में डिसाइड करता है. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट when you talk about actuarial department, what is the role of an auditor? So actuary is an expert, and when we being auditors are verifying some experts work, we need to understand their calculation, computation, what is the role of their actuary, उनका source of data क्या है ना, इनका कोई standardized technique है क्या, industry follow technique क्या है. So that is here you go. Role of actuary क्या होता है? Product development, model development, statutory valuation, reserving, solvency, business planning. So what is the role of auditor? To check the valuations, whether that is duly certified, assumption क्या लिया है, estimations क्या है, source of data क्या है, whether the certificates issued by the actuary, try whether I can rely on those certificates or not, discuss with actuary if required. So these are the role of an actuary and how will we verify. So खाली रोल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिटर के रोल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सो 2 ways क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू. दिस इज द रोल ऑफ एक्चुअरी इन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट एंड हाउ विल यू वेरीफाई इट. हम लोगों को अजम्पशंस, उनका जो प्रोसेस है, सर्टिफिकेशंस, इन सबको चेक करें. नेक्स्ट, हाउ विल यू वेरीफाई. बोलता है एज एन ऑडिटर डिस्कस द स्टेप्स taken by an auditor in order to verify the premium collected by the life insurance company. The premium collected by life insurance company में वो 6 points वाला आंसर बताया था मैंने. Premium collected, advance, calculations of premium. Remember this? Other points. ये life. चलो देखो. Collection of premium, whether that is credited to a separate bank account, daily reconciliation has been made, appropriate mechanism is there to ensure that all the collections are deposited to the bank on the timely basis. Calculations of the premium, recognition, basically check that premium is appropriately recognized. There is an inbuilt mechanism to recognize the income of premium. There is appropriate system in place to have a reconciliation, to conduct reconciliation. Whether the advance premium is received, appropriate liability standing किया है कि नहीं, identification कैसे किया है, reporting of the figures, premium figures to IRDA and the management, and last F वाला point talks about other areas in order to check proper SOPs are developed by the companies or not. So that is premium collection for life insurance. Yeah, ये 6 points, right? Episodes. Next, explain briefly that if the policy is lapsed and revived in case of life insurance, what is your role in order to verify it? देखो, पॉलिसी लैप्स कब होता है? बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम. तो हम लोगों को ये चेक करना है कि द लैप्स का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पॉलिसी. वी विल नॉट बुक एनी काइंड ऑफ क्लेम बिकॉज यू हैव नॉट पेड द प्रीमियम इन टाइम. तो जहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम है एंड फॉर दैट हम लोग डिसकंटिन्यूएंस कर रहे हैं पॉलिसी का, दैट इज नोन एज लैप्स. जहाँ पे भी हमको ऐसा लगता है कि द पॉलिसी इज लैप्स्ड, अप्रोप्रिएट मार्किंग टू दैट पॉलिसी इज बीइंग मेड कि दिस पॉलिसी इज लैप्स्ड और नॉट, ये वेरीफाई करना. ये भी चीज़ चेक करना कि जो पैसा उन लोगों ने बाद में ग्रेस डेज में हमको दिया है, से फॉर एग्जांपल आपने डेडलाइन मिस कर दी, वी मार्क द पॉलिसी एज लैप्स्ड, बट हम लोगों ने 3-4 दिन आपको ग्रेस दिया था. इन दैट पीरियड यू केम टू द कंपनी एंड यू सेड कि मैम आई एम सो सॉरी, आई मिस द ड्यू डेट, बट मुझे ये पॉलिसी रिन्यू करनी है, मुझे रिवाइव ही रखनी है, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट. सो चेक वेदर द रिक्वेस्ट फॉर रिवाइवल इज रिसीव्ड बाय द पॉलिसी होल्डर, द अप्रोप्रिएट लेट फीस, प्रीमियम पॉलिसी का पैसा इज रिसीव्ड और नॉट. एजेंट्स डू नॉट गेट रिन्यूअल. हाँ, अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो एजेंट्स को भी रिन्यूअल का कमीशन नहीं मिलेगा. What is the role of the auditor? The primary objective of the auditor is to check and confirm the due dates are appropriately recorded, monitored properly, policies are marked lapsed on non-receipt of the premium accounts on the due dates or the grace period. In case of revival request, check the outstanding amount are paid. जो भी पॉलिसी रिवाइवल का रिक्वेस्ट आया है, पॉलिसी होल्डर ने दिया है, ऑल्सो इवेल्युएट द सिग्नेचर्स. Next, question number 22. You have been appointed to carry out the audit of Sky Insurance Limited. You observe that commission paid to the agents constituted the major expenses. Same point.
कमीशन टू एजेंट्स, कमीशन पेड टू द एजेंट्स को कैसे वेरीफाई करेंगे दैट दिस इज डन. रेट्स, लिमिट्स, सॉलिसिटेशन बिजनेस, ब्लैक लिस्टेड, TDS, ऑफिसर्स इन चार्ज, अप्रोप्रिएट डिसबर्समेंट, ये सारा चीज. कमीशन पेएबल, व्हाट इज कमीशन पेएबल? दैट इज आउटस्टैंडिंग कमीशन टू द एजेंट. तो दो चीज था, है ना, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन पेएबल. तो ये भी सेम पॉइंट है, कैलकुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है. सो न्यू बिजनेस, एजेंसी कमीशन, क्यों आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, बाकी है. नेक्स्ट इज एक्चुअरियल प्रोसेस को, व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑडिटर इन ऑर्डर टू वेरीफाई इट. एक्चुअरियल प्रोसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा, दिस इज ऑल्सो सेम, मार्केट एज सेम. Actual policy is a already asked past examination question. Role of actuary and role of auditor while verifying the actuarial process. Assumptions verify करना, assumption के साथ साथ उनका certification करना, discussion करना, ये भी चेक करना कि इनका जो डेटा और सोर्स ऑफ डेटा है वो अप्रोप्रिएट है क्या. दैट इज द रोल ऑफ ऑडिटर इन वेरीफाइंग द रोल ऑफ एक्चुअरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे सॉल्वेंसी मार्जिन वाली बात कर रहे हैं. ये पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है. मेसर्स राजुल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट started the statutory audit of their clients Concession Limited, a general insurance company which has a paid up share capital of 18,600 lakhs. Okay. During the course of the audit, it was found that the company was not maintaining the required solvency margin. Oh my God. As per the provision of Insurance Act 1938. When the issue was escalated to the management, they replied that solvency margin needs to be maintained as per the limits only as on the last date. बोलते कम ऑन, सॉल्वेंसी मार्जिन खाली 31 मार्च पे हम लोगों को देखना होता है. थ्रू आउट द ईयर इट इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला. कॉमेंट ऑन द रिप्लाई ऑफ द मैनेजमेंट वेदर दैट इज टेनेबल और नॉट. हम लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली रॉन्ग. 64VA टॉक्स अबाउट सॉल्वेंसी मार्जिन. Solvency margin has to be checked each and every day, all the time. हम लोग कहते हैं all the time the insurance company should have more of asset as compared to the liabilities. और वहाँ पे आपको 50% का क्राइटेरिया दे करके रखा है. मिनिमम कैपिटल विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 6, उसका 50% शुड बी मेंटेन्ड एज द सॉल्वेंसी मार्जिन बाई ईच एंड एवरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी. सो यहाँ पे 64VB के हिसाब से, VA के हिसाब से, every insurance or reinsurance company needs to maintain an excess of the value of asset over liability. Please underline this all the time, which should not be less than 50% of the amount of minimum capital which is stated under section 6 of the act. Hence in the given case आप ये बोल रहे हो कि खाली 31st of March पे ये amount रखना है, that is absolutely not tenable. Next. Adeshwar Private Limited is engaged in the business of real estate. Again, this is the same question जो मैंने आपको एकदम ही स्टार्ट में रीड आउट करवाया था कि रियल एस्टेट में इनका इन्वेस्टमेंट है. बोलो वैल्यूएशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट कैसे करें. ठीक है. द ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड सम ऑफ द आउटकम ऑफ एस्टिमेशंस एंड द प्रायर पीरियड री एस्टिमेशंस. अब यहाँ पे देखो, एस्टिमेशन बेसिकली हमको चाहिए क्या, रियल एस्टेट का वैल्यूएशन. तो इसके लिए हम लोगों ने मांगा कि पिछले टाइम कैसे आपने वैल्यू किया था, तो उसका डेटा दे दो. मैनेजमेंट ने क्या बोला, देखो मैनेजमेंट रेफ्यूज द इन्फॉर्मेशन स्टेटिंग कि सर आप सिर्फ करंट ऑडिट देखो ना, आपको प्रीवियस ऑडिट वगैरह देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ऑडिटेड है. व्हाट इज योर लुकआउट इन दिस. हम लोग बोलेंगे कि कम ऑन, हमारे हिसाब से ये सारा सब कुछ इवेल्युएट करना हमारी जिम्मेदारी है. एज पर SA 540 टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स, इट इज़ अवर ड्यूटी. हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट एस्टिमेशन, प्रायर पीरियड एस्टिमेशंस, पर्टिनेंट टू री एस्टिमेशंस, एवरीथिंग आई कैन आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि नो 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 दिस इज़ नॉट योर लुकआउट, मेरे जजमेंट के लिए मुझे ये सारा डेटा की ज़रूरत है, मैनेजमेंट कैन नॉट रेफ्यूज इट. So here the management is not correct in refusing the relevant data. Cool. This is the expected exam question. इंश्योरेंस में से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस करवाए हैं क्योंकि ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड कंपाइलिंग इन दिस ऑडिट के सवाल. ठीक है.
So I hope you all are able to recall the question and answer based on the studies which we have done up in the class. So that is all for the question and answer session. So this is all about the practice session of audit of insurance company. चलिए, क्वेश्चन बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहला क्वेश्चन गोज लाइक दिस. See students, always focus on the last line of the question. ये सारे जो miscellaneous topics है ना, उसमें सबसे पहला benefit ये होता है कि यहाँ पे आपको straight forward questions आएंगे, ठीक है. एंड कभी भी आपको लगे कि there is a question which is story types, मतलब case study kind of question है, तो उसमें लास्ट लाइन पे फोकस कीजिए. मैं आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ जहाँ पे लास्ट लाइन के अनुसार ही पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस, ठीक है. तो फोकसिंग ऑन द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन, सब प्रवचन देकर के रखा है. एंड देन दे से स्टेट व्हाट एरियाज ऑफ एनालिसिस इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द असेट्स आर नॉट स्टेटेड एट ओवर वैल्यू प्राइजेस. मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ओवर वैल्यूड असेट्स. तो हम लोग ओवर वैल्यूड असेट्स के केस में क्या क्या लिखेंगे? इंटेंजिबल्स हैविंग नो वैल्यू, इम्पेयरमेंट करना है कि नहीं करना है, एनी काइंड ऑफ असेट्स जो पेटेंट वाला चीज़ बोला था हम लोगों ने, गुडविल वाली चीज़ बोली थी, ये सारी चीज़, इन इम्पेयरमेंट करने वाली चीज़, ये सारी चीज़ विल कम इन टू द आंसर. अनकलेक्टेबल इन रिसीवेबल्स, ऑब्सोलेट और स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज, any kinds of assets which have actually fallen the real value, assets which are under litigations, investments are carried at a much lower price होने चाहिए थे but they are carried at cost, infructuous expenditure sunk cost, group balances under reconciliation, intangibles having no realization. Next, as a due diligence auditor, discuss the key areas you will cover. तो ड्यू डिलिजेंस के एरिया में आप कौन से एरियाज को कवर करेंगे? सब कुछ, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो. ये कैश फ्लो का इंटरनल क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखने को बोला था स्टडी वाले आंसर में. कैश फ्लो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, सॉरी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, statutory compliances. So all these are the key areas of due diligence. सबसे पहला कंसेप्ट है. इसके बाद आता है यहाँ पे what are the factors which you will consider for evaluating future maintainable turnover. क्या था ये? MPTC, marketability, political and economic condition, trend and competition. इसके बेसिस पे you will be able to analyze future maintainable profit. इसके बाद हाउ विल यू एग्जामिन द हिडन लाइबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट. हिडन लाइबिलिटीज में क्या रहता है? वो अनफंडेड वाला, जहाँ पे इंडेमनिफिकेशन, गारंटी, लेटर ऑफ कंफर्ट, एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स विच यू हैव एंटर्ड इनटू फॉर बायबैक्स. कोई ऐसे अग्रीमेंट जहाँ पे आपकी कंटिजेंसी दिखती है, एनी काइंड ऑफ लिटिगेशंस, पेंडिंग केसेस, तो ये सारा चीज़ हिडन लाइबिलिटीज में आएगा. गारंटीज, लेटर ऑफ कंफर्ट, एनी काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज, एनी काइंड ऑफ सब्सिडरी जहाँ पे आपने इंडेमनिफिकेशन करके रखा है, अनफंडेड ग्रेचुटी, सुपर एन्युएशन, लीव सैलरी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्लेम्स, थर्ड पार्टी क्लेम्स, अग्रीमेंट टू बाय बैक, पेंडिंग लिटिगेशन, टैक्स लाइबिलिटीज, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटी, ओवर वैल्यूड एसेट सेम एज अबव. व्हाट विल यू कंसिडर फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? MPTC. फिर इसके बाद list down the areas of due diligence in order to find overvalued asset. Again the same. Write the examples of the heading of due diligence report starting from brief summary. The content में क्या क्या आएगा? brief summary, background, target का background क्या है, SWOT analysis, जितने भी areas of due diligence आपने किए वो सबके नाम लिख देने हैं, shareholding pattern, suggestion etc. Next is CA Rajan is an 80 years old person who wishes to sell the proprietary, मतलब खुद अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं. सीडा लिमिटेड wants to buy and वो चाहते हैं कि आप ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कीजिए in order to find out the worth of the business. What procedures would you ask him to adopt? क्या प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट करेंगे? यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल डीडी वाली चीज़ें गाइज. यहाँ पे बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ आस्किंग यू टू टेक अप द बिजनेस, मतलब हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग कमर्शियल डीडी, फाइनेंशियल डीडी,
टैक्सेशन डीडी, एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम डीडी, एरियाज ऑफ डीडी वाला क्वेश्चन, लीगल डीडी। नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज आएगा, सेम, ये हो चुका हमारा आंसर। नेक्स्ट, हाउ ड्यू डिलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। हाउ ड्यू डिलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट इज अ बेसिक क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ स्टडी मैथ क्वेश्चन। स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में जो आंसर लिया था, ड्यू डिलिजेंस इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो एक पर्सन करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रोस्पेक्ट बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस खरीदना चाहते हो तो ड्यू डिलिजेंस करोगे। ऑडिट का मतलब क्या होता है, वेरिन यू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to express the independent view thereon. Due diligence will take into consideration both financial and non-financial aspects, but audit will only take into consideration the financial aspect. इसके बाद, yes, very beautiful question. PB Limited, mark it important, this is an expected exam question. PB Limited entered into the deal with SV Limited for buying its business of manufacturing wooden goods. PB Limited has appointed your firm for conducting due diligence review and they want to know the cash generating ability of SV. मतलब जो टारगेट है उसका कैश जनरेटिंग एक्टिविटीज कितना है और क्या है. What points will you check in order to ensure that the manufacturing unit of SV Limited will it be able to meet the cash flow requirement? तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट आएगा, आइडियल फंड्स कैसे यूटिलाइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना हो रहा है, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कन्वर्ट हो रहा है. सो whether the company is able to honor the commitments, whether the company is able to convert the trade receivables and inventory, how the company is deploying funds, are the funds invested, the ideal funds are invested in order to find out the maximum possible benefits. तो ये सारा चीज़ें मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 8 पे दिया हुआ कंसेप्ट है ये. ठीक है, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू ड्यू डिलिजेंस कम्स टू एन एंड. इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, अ नेशनलाइज्ड बैंक मतलब बैंक है, बैंक को एप्लीकेशन मिली है कोई बोरोवर के पास से कि सर कृपया लोन दे दीजिए. अब वो बैंक चाहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि वो जो बोरोवर है ये वर्थवाइल है कि नहीं है. क्या चीज़ चेक करेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस. सो डिस्कस व्हाट पॉइंट्स विल यू कवर इन योर इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक. दैट इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन. तो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक विच इज yes looking forward for advancing. So purpose of the loan, scheduled repayment, financial stability, memorandum, अगर कोई कंपनी है तो उसका MOA, AOA, ग्रोथ क्या है, 5 years down the line how the performance would be. तो ये चीज़ चेक कर. ठीक है, दैट इज, इतना सारा नहीं लिखना है बिकॉज दैट विल बी अ क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा. तो जो क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स के लिए आता है गाइस, सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द रेलिवेंट कंटेंट. ठीक है, नेक्स्ट, what all are the important steps which you will conduct while conducting the investigation on behalf of the incoming partner for the partnership firm. तो यहाँ पे partner of the partnership firm के लिए क्या चीज़ चेक करेंगे, primarily you will be ascertaining the history of the firm, the history of the partners का क्या reputation है, goodwill of the firm, business of the firm, goodwill के बाद what is the market, examination of the security, profitability, financial stability. यहाँ पे ये भी चीज़ चेक करना है, what are the reasons for admitting a new person in the firm. ये वही वाला आंसर था. इसके बाद यहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट फ्रॉड. तो मिस्टर शर्मा इज रिव्यूइंग एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. द कंपनी हैज विटनेस्ड फ्यू फ्रॉड्स in past, mainly in the nature of material stolen from the sites and the fake expense vouchers. Mr. Sharma is evaluating the options for verifying the process to reveal the fraud and the corrective actions to be taken. As an expert, question यहाँ से शुरू होता है. You are required to brief Mr. Sharma about inventory fraud and the verification of the defalcation in case of inventory. Inventory fraud कैसे होगा, तो हम लोग कहेंगे कि concealment हो सकता है कि एम्प्लॉय सिंपली गुड्स रिमूव करके लेके जाए, एम्प्लॉय थेफ्ट चोरी कर ले, एम्प्लॉय जो इन्वेंट्री रजिस्टर है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, उसको मैनिपुलेट कर ले.
So how can you verify this? You can verify the inventory register, inventory inwards and outwards, inventory utilization, inventory का pilferage, CCTV cameras, high supervision, internal controls over inventory. तो ये सारा चीज चेक करना है आपको. Whether they are readily converted into cash, so theft are possible, collusions are possible. आपको entire system of receipts of the goods, determination who is responsible for making the inventory register, internal control, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डेटा. तो ये सारा चीज चेक कर. नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा सा आंसर हम लोगों ने किताब में से पढ़ करके रखा है. ऑडिट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन्वेस्टिगेशन इज इंक्वायरिंग इनटू द फैक्ट्स. इन्वेस्टिगेशन के लिए वी नीड कंक्लूसिव एविडेंसेस, वी हैव नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड, रिपोर्टिंग इज डन टू द अथॉरिटी हु हैज अपॉइंटेड यू टू एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर. तो ये सारा चीज पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होगा. आरटीपी का क्वेश्चन है, इजी है, नॉट दैट डिफिकल्ट. नेक्स्ट, अगेन इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन. हाउ विल यू वेरीफाई द एरियाज ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ डिफाल्केशन? सो दीज आर द एरियाज के रिमूव कर सकते हैं, सिंपली राइट ऑफ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंट्स. आपको क्या चीज चेक करना है? इंटरनल कंट्रोल, सफिशिएंट डेटाज आर अवेलेबल और नॉट. द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द क्वांटिटी, फिजिकल वेरिफिकेशन करना. देन इट इज शॉर्टेजेस तो नहीं है, इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड रजिस्टर करना, वेस्टेजेस तो नहीं है, फास्ट रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना, पर आवर मशीन कैपेसिटी चेक करना कि इफ 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन द साइकिल ऑफ 1 आवर, हाउ मेनी आवर्स द मशीन्स आर रनिंग, अकॉर्डिंगली कितना रॉ मटेरियल यूज होगा. मार्क दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिफोर आई टेक यू थ्रू द क्वेश्चन, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग. इन्वेस्टिगेशन में गाइज देयर वर 2 कंसेप्ट्स. ठीक है, पहला था इन्वेस्टिगेशन करते समय देयर आर फ्यू इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड. हर एक पॉइंट ऑफ इशू पे एक रिटेल क्वेश्चन पॉसिबल था, जैसे मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको समझाया था. तो वही इशू इन्वेस्टिगेशंस में जो इशू होता है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है. जरा ध्यान दीजिए, लाइक यू नो, ट्राई टू रिलेट द आंसर. ठीक है, अगर आंसर आता है वेरी गुड, मेरे तरफ से शाबाशी मिलेगी. अगर नहीं आता है तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द कंटेंट वंस अगेन एंड इश्यूज विथ रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स को, ए से लेकर के जी तक के पॉइंट्स को फिर से रिलेट करें. ठीक है, चलो. सो सब प्रवचन है. मिल्क लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर, पनीर. ऐसा कौन बोलता है क्वेश्चन में? etc. Government made certain changes in rules and regulations relating to this sector. Consequently, management decided to go for expansion. Management was looking for some financial investors who can fund some part of proposed expansion. Mr. X is interested in the venture and appoints you to act as an advisor for the proposed investments in the business of Milk Limited. Cool. You have to investigate audited financial statements to ensure the value of the shares are based on the audited financial statements is appropriate. Now the question begins. What process would you use for checking and whether can you put reliance on the audited financial statements? Yes, यहाँ पे सब कुछ प्रवचन है. You are appointed to investigate shares, you are investigating, you are relying on audited financials, सब प्रवचन है. What is the question saying? The question is saying whether can you put reliance on the financial statements, yes or no. हम लोग कहेंगे the answer to this is again, that cannot be, it is, we cannot have any dogmatic view. एक single view नहीं possible है. Totally depends upon circumstance to circumstance. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, उसके बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, उसके बेसिस पे अगर हमको इन्वेस्टिगेशन करना है तो बात अलग है, तो हम उस पर भरोसा ना करें. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ही सही है, ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है वो एकदम ही गजब ऑडिट किया, तो ना इन्वेस्टिगेटर फाइंड कर लेगा कि मैं इस पर भरोसा करूँ या ना करूँ. सो रिकैप. सबसे पहला चीज हम लोग कहेंगे कि नो डॉगमेटिक व्यू इज पॉसिबल. कोई 100% का ठोस व्यू पॉसिबल नहीं है. 2 चीजें हैं. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इशू है, उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करेंगे. दूसरा, अगर हम लोगों को वैल्यू ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर सकते हो अनलेस यू फील दैट ऑडिट इज कंडक्टेड इन अ वेरी वेरी नेग्लिजेंट मैनर.
ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। कि अगर हमको लगे अनलेस ही फाइंड्स आउट दैट द ऑडिट हैज कैरिड आउट वेरी कैजुअली, तब तक के लिए हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। नो डॉगमेटिक व्यू आर पॉसिबल। नेक्स्ट, अगेन इश्यूज। मैंने आपको बोला था ये चैप्टर में 2 इश्यूज है। इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रिपोर्टिंग। अब देखो यहाँ पे जब भी आपने थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ इश्यूज थे, आपको एक्सपर्ट का काम भरोसा करना है नहीं करना है, एक्सपर्ट को हायर करना है नहीं करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा करे ना करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वर्किंग पेपर्स को स्टोर करे ना करे, ये सारा चीज इश्यूज था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, अब रिपोर्ट बन रहा है। इस रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या इश्यूज को आप कंसिडर करोगे? देखो बच्चों, रिपोर्ट इज अ फाइनल रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका काम इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक मीनिंग। योर एविडेंसेस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस। यू शुड नॉट यूज टेक्निकल जार्गन्स। जितना पॉसिबल है फैक्चुअली बात करें, जितना पॉसिबल है टू द पॉइंट बात करें, कट शॉर्ट, कट द स्क्रैप ऑफ। ठीक है, इफ यू फील कि देर इज नो नीड टू राइट ऑन एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल अनवांटेड यूजलेस मटेरियल, स्किप इट। ये सारा चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा व्हेन यू आर रिपोर्टिंग। सो इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड while preparation of report क्या है? The report should not contain anything which is irrelevant. The words and the expression should be used very properly, should not have different meaning or different interpretation. It should be based on facts, it should be based on evidences, link it with evidences. It should not be based on assumption. Try minimizing the utilization of assumption. But हाँ, अगर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन में आप assumptions यूज कर भी रहे हो तो मेक श्योर दैट यू एक्सप्रेस इट क्लियरली, स्पेल आउट द नेचर इन द ऑब्जेक्टिव, स्कोप, लिमिटेशंस। हेडिंग पैराग्राफ फॉर्म में डालो सो दैट जो रीडर है उसको ईजी पड़े। जो भी रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस है उसको एक्सप्रेस करो। फाइनली आपको आपका ओपिनियन बताना है जो अपीयर हो रहा है, आपको कोई फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं देना है। Next question, question number 19. Mr. Clean who proposes to buy proprietary business, you are required to specify the areas of investigation. खाली proprietary business का areas यहाँ पे लिखना है, कंपनी का नहीं लिखना है। कि अगर कोई proprietary business हम खरीदना चाहते हैं तो we will go through the goodwill, the nature of the business, the expansion, the financial stability, sales, unexpired period of patents, age of the managerial, the present age of the managerial staff, जो करंट लीज पीरियड है, ये सारे रीजंस टू सेल द बिजनेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी इज सस्पेक्टेड टू एम्बेजल कैश रिसीट एज एन इन्वेस्टिगेटर व्हाट एरियाज वुड यू वेरीफाई? कैश रिसीट्स की अफरा तफरी हो रही है, मतलब कैश रिसीट्स जो हो रहा है, पैसा कैश में रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है एम्बेजलमेंट है, तो क्या चीज़ चेक करेंगे आप? चीज़ चेक करोगे कि जो पैसा आया है उसका काउंटर फॉइल चेक कर लो, क्रेडिट सेल्स चेक कर लो, जिसको कैश डिस्काउंट्स दिया है वो वेरीफाई कर लो, जो पर्सन को शॉर्ट डेबिट किया है वो वेरीफाई कर लो। अंडर कास्टिंग ऑफ रिसीट तो नहीं हो रहा है, अंडर रिकॉर्डिंग, सारा का सारा रिसीट रिकॉर्ड तो हुआ है ना। नेक्स्ट, हाउ वुड यू वेरीफाई सप्लायर लेजर? मैंने अभी अभी फ्रॉड में आपको पढ़ाते समय ये चीज़ पढ़ाई थी। क्या चीज़ पढ़ाई थी? कि कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स एंड सप्लायर लेजर में फ्रॉड हो सकता है। सो व्हाट आर द सप्लायर लेजर में फ्रॉड? दीज आर द वे सप्लायर लेजर में फ्रॉड हो सकता है। फिक्टिशियस एडजस्टमेंट्स करना, सप्रेसिंग क्रेडिट नोट्स, विड्रॉविंग द अमाउंट अनक्लेम्ड सप्लायर के लिए, एक्सेप्टिंग परचेजेस एट अ हायर प्राइस, कंसिडरेबली हायर प्राइस, कमीशन से कट रखना। तो यह है सप्लायर लेजर में फ्रॉड होना। अब इसको चेक कैसे करेंगे? रिबेट्स चेक कर लो, कंफर्मेशन, इनवॉइसेस, सेल्स इनवर्ड्स, सॉरी गुड्स इनवर्ड्स रजिस्टर वेरीफाई कर लो, ये 4-5 चीज़ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। XYZ Limited has brought a land in Nagpur for setting up the manufacturing unit in the year 2018 at a price of 10 crores, 10 crore. In the year 2019, one of the director raised a suspicion, उनको शक हो रहा है, बोलते हैं 10 करोड़ का जमीन आया, बहुत लग रहा है मेरे को तो, and transaction related to the purchase of land. Therefore, an investigation was ordered by the management and PVN Associates were appointed as investigators. PVN जो ये पर्सन है, इनको
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला। पीवी एंड एसोसिएट्स वर ऑफ द व्यू कि यार उनको एक्सपर्ट की नीड की ज़रूरत है, मतलब एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी। वेदर कैन दे यूज द वर्क ऑफ एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट, इफ येस व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर दे शुड फॉलो। क्या इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट का काम या फिर एक्सपर्ट के काम पे भरोसा कर सकता है? यस, कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। सेकेंड थिंग, बट देखो इन्वेस्टिगेशन अपने आप में बहुत ही क्रूशियल मैटर है। अगर क्लाइंट ने आपको मना कर दिया तो ये आपको देखना है गाइस। अगर आपको एक्सपर्ट के हेल्प की ज़रूरत है तो क्लाइंट से पूछ लीजिए कि क्लाइंट एक बात सुनो ना, वो जो एक्सपर्ट है ना उनके हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप कहो तो मैं उनसे एक बार बात करूँ। सो एक बार जनरल अग्रीमेंट कर लीजिए आपके क्लाइंट के साथ कि वो आपको अलाउ करें। एंड वंस यू आर relying over the work of an expert, make them understand about the cruciality of the situation and ask them to keep the situation confidential, to keep the information confidential. So PV and associate अगर उनको नेसेसिटी लगता है, बिंदास आप एक्सपर्ट का काम यूज कीजिए, जनरल कंसेंट ले लीजिए फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। एंड हाँ, जो भी कॉस्ट वॉस्ट की बात है वो पहले ही रिलेट कर लीजिए कि देखो इसका इतना पैसा होगा, ऐसा ना हो जाए कि एंड मोमेंट में पैसों के कारण कहीं पे काम बिगड़ जाए। So at the beginning of investigation, you should settle the question of cost for obtaining the views and related implications. So this should be the procedure कि cost find out कर लो और client से permission ले लो, खत्म। यहाँ पे आपका all the questions with regards to investigation comes to an end. चल, now the next is forensic audit के Q&A. Very quick, बहुत ही जल्दी हो जाने वाला concept, बहुत ही इजी वाले कंसेप्ट, ठीक है। रीसेंट पेपर्स में फॉरेंसिक ऑडिट के मान बढ़ गए हैं बच्चों। क्वेश्चंस तो आते हैं, मेजरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, एक्सप्लेन द डिफरेंशिएशन बिटवीन द फॉरेंसिक ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है फॉर एन, ये है ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट का, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होता है, यहाँ पे वी नीड टू पुट इन प्लेस फ्रॉड किसने किया, कैसे किया। टेक्निक्स यहाँ पे जो होती है वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, सैम्पलिंग, ये सब होता है। बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स होता है, डेप्थ चेकिंग होता है। पीरियड बेसिकली यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड, एंड यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं, कभी भी फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ये सब पे भरोसा कर लेते हैं। बट फॉरेंसिक ऑडिटर के टाइम पे यस वी नीड टू फाइंड आउट द वेरी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को हम लोग सिर्फ वाउच करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जामिनेशन तक चले जाते हैं। अगर एडवर्स फाइंडिंग है तो हम लोग 705 के तहत मॉडिफिकेशंस करते हैं। यहाँ पे अगर एडवर्स फाइंडिंग है तो कोर्ट में जा करके लीगल इम्प्लीकेशंस आएंगे। नेक्स्ट important question, you have been appointed as a forensic accountant for Messrs Secure Limited to carry out various analysis as a part of your assignment to arrive at a particular result. Specify various analysis that you might carry out, that might be carried out by you in order to arrive at results. यहाँ पे क्या है, the procedures to be performed, ये है analytical procedures, perform analysis। तो जहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स के बारे में बात की है, तो यहाँ पे वी टॉक अबाउट कि इन एरियाज में हम लोग एनालिसिस करेंगे, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस हो गया, समराइजिंग द लार्ज ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रेसिंग द असेट्स हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ असेट्स, कैलकुलेशंस, यूटिलाइजेशन ऑफ असेट, डिस्काउंटिंग रेट्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस, परफॉर्मिंग रिग्रेशन, ये सारे एनालिसिस, यूटिलाइजिंग चार्ट्स, ग्राफ, ये सारे एनालिसिस आप करते, ठीक है। सो the actual analysis performed will be dependent upon the nature of assignment and may involve these kind of analysis. कैलकुलेशन करना, इकोनॉमिक डैमेजेस फाइंड आउट करना, ये चीज़ चेक करना कि कौन सा चीज़ किसको कोरिलेट कर रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के लिए ट्रेसिंग करना, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को स्टडी करना, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना। व्हाट इज सेंसिटिविटी, मैंने पढ़ाते समय भी बताया था। हाँ, कुछ ठंडा या गर्म खाने से जो दांतों में होता है उसे हम झंझनाहट कहते हैं। इस सेंसिटिविटी का मतलब होता है चेंज इन वन मेक्स द अदर फैक्टर चेंज थ्रू अ लार्जर एक्सटेंट, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन देख करके डर मत जाना, भले क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट है बहुत ईजी।
ABC Limited is a listed company having a turnover of 50 CRs and plans for expansion by installation of new machinery and new buildings, जिसका turnover project cost है 20 crores. ये कुल मिलाकर के project cost दिया हुआ. Project has been implemented in the year 2017-18 and one of the accountant points out that the managing director that something wrong has happened in the purchase of building. ठीक है, अब आया main question. On hearing this, the management is planning to appoint a forensic auditor. Advise the management how forensic accounting is different from audit. Differentiation. Okay. On hearing this, management plans to appoint forensic auditor. Advise the forensic auditor the steps to be taken in case of forensic audit process. 6 steps. Steps to be taken in case of forensic audit process. पहले तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे ए वाले का आंसर, फिर हम लोग लिखेंगे बी वाले का आंसर. What are the steps? Yeah. Initialization, developing plan, obtain relevant evidences, perform analysis. Yeah, perform analysis, reporting and last court procedures. So 6 points आते हैं यहाँ पे process में. Next, ये again is based on, ये जो case study है is based on techniques of forensic audit. So CA Robo has been appointed as forensic auditor of BMY Bank Limited for one of its borrower account, Wrong Limited. CA Robo started the audit by first reviewing the transactions of the borrower in the bank statement as per the bank records to identify any hidden pattern in the information. She मतलब समझो क्या हो रहा है, उसने काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है एंड शी इज ट्राइंग टू कोरिलेट कि कुछ गलत, कुछ अनयूजुअल, कुछ ऐसा सुराग मिल जाए जिससे हम लोग ये फाइंड कर सकें व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग. नाउ शी हैज़ टू रिव्यू ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एज ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे वर हंड्रेड्स. बहुत ज़्यादा डेटा था, एज आई टोल्ड यू 3 साल का इतना सारा डेटा था. सो शी वॉज स्टक, ओ माई गॉड, अब इतना सारा डेटा, गट्ठर भर डेटा, इतना सारा फाइल्स है, कैसे वेरीफाई करें. In order to identify, underline this word, hidden pattern of information. So guide CA Robo what technique she should use in order to find out the hidden pattern of information. Data mining technique. Data में से information इकट्ठा करना, that is data mining. This was a question. Yeah, so data mining. Data mining is a technique, as I told you, this is a very important technique जिसके via आप hidden pattern under which is underlying the very huge volume of data आप इकट्ठा या फिर find कर सकते हो. So data mining is a set of technique जहाँ पे आप mine करते हो large volume of data in order to find out the hidden or unexpected information pattern. It discovers unusual knowledge or the pattern in the data without any predefined knowledge. अगर मुझे पहले कुछ पता ही नहीं है ना, फिर भी डेटा माइनिंग से हमको ये पता चल जाएगा. It explains the affiliations, associations, trends, variations. Data minings are actually categorized as 3: discovery, दूसरा predictive model और तीसरा deviation and link analysis. Deviation and link analysis. So predictive model and deviation and link analysis. So next in the given question, रोबो को क्या करना चाहिए, डेटा माइनिंग करना चाहिए. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर फॉरेंसिक डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक. सो दीज आर द फॉरेंसिक टेक्निक: क्रॉस ड्राइव, एनकेस, डिलीटेड फाइल्स, स्टेगनोग्राफी एंड MD5. व्हाट इज दिस? आई टेल यू. सी कई बार होता है कि आपके सिस्टम में डेटा करप्ट हो जाता है, या होता है ना, या हमारे ये अमित भाई भी हर बार बोलते हैं मैम डेटा उड़ गया. अभी जब भी डेटा करप्ट हो जाता है या फिर डेटा इज डिलीटेड, कैन वी गेट बैक दैट डेटा? आंसर इज येस, वी कैन गेट बैक द डेटा फ्रॉम इवन फ्रॉम योर मेमोरी कार्ड, फ्रॉम हार्ड डिस्क, फ्रॉम एनी ऑफ द पेन ड्राइव्स विच यू आर हैविंग, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज काइंड्स ऑफ टेक्निक. ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं इंजीनियर्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिलीटेड फाइल्स. इट इज पॉसिबल टू गेट द डिलीटेड फाइल्स. ठीक है, सो ये सारे टेक्निक्स हैं. ट्रैकिंग द लॉग फाइल्स, PC सिस्टम लॉग्स, फ्री लॉग टूल्स, ऐसे सारे टूल्स होते हैं जो एक फॉरेंसिक ऑडिटर यूज करता है इन ऑर्डर टू. देखो, अभी कोई पर्सन कुछ गलत काम कर रहा है तो आपको क्या लगता है वो गलत काम की फाइल स्टोर करके रखेगा? नहीं, वो गलत काम की जो फाइल है वो तुरंत डिलीट कर देगा, क्योंकि अकाउंट्स में कोई मैनिपुलेशन किया, जो पुरानी फाइल से उसको डिलीट कर दिया. तो जैसे ही उसको लगता है कि सामने से द फाइल इज शिफ्ट डिलीट, बट
This forensic auditor has techniques where he can find out the files even if at all it is deleted. So ये थी techniques. Next, question number 6. Messrs GSB Limited into the business of construction for past 25 years. Management of the company came to know that the building material sent to the construction site are of standard quality, whereas the payment released are on the higher side. मतलब वो सब standard quality थी, but payment जो थी वो high थी. So आपको detailed investigation करना है. Forensic auditor completed his investigation and now he is preparing the reports. What are the broad areas of information that needs to be incorporated in the report of the forensic auditor? Batao. What are the areas? It has to give the clear and the concise view. So यहाँ पे भी reporting के लिए you should keep in mind the clear thinking. Reader most important होना चाहिए कि उसको कैसा समझ में आ रहा है. Unbiased approach, किसी का तरफदारी मत करो. Impact of report ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. What is impact of report? See, आपके रिपोर्ट के बेसिस पे किसी को सजा हो सकती है. आपने अगर चुगली आकर के गलत चीजें गलत लोगों के बारे में कर ली तो गलत पर्सन को सजा हो सकती है. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है. सो इम्पैक्ट, डोंट जंप एट कंक्लूजन डायरेक्टली. वेट, अंडरस्टैंड के आपके बेसिस के आपके रिपोर्ट के बेसिस पे रिपरकेशंस क्या है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट. Yeah, content of forensic audit report. Again, executive summary, risk analysis, audit के procedures क्या थे, evidences क्या मिले, interpretation क्या था, and आपके कोई recommendation. What do you understand by the word forensic? And why there is a need of forensic audit which is arising? Important question. So हम लोग कहेंगे कि forensic audit का need है in fraud detection, in computer forensic. इनिशियली ना जब भी मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ फॉरेंसिक का, आई ऑलवेज टेल यू गॉन आर दोज डेज या फिर स्टिल देर आर डेज जहाँ पे फ्रॉड होता है बाय मास्क एंड गन्स. अब जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है बाय कंप्यूटर्स एंड माउस. तो ये कंप्यूटर फॉरेंसिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रॉड का प्रिवेंशन करने के लिए. टू प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमोनी. व्हाट इज एक्सपर्ट टेस्टिमोनी? कि कोई केस चल रहा है, लॉयर ने आकर के आपको कहा कि मेरे को ये डेटा तो मिला है बट ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अब मुझे इसके अंदर ये जो मोबाइल मिला है इसके अंदर जो डेटा है इसको जानना है. तो नाउ इन ऑर्डर टू टेस्टिफाई एज एन एक्सपर्ट आपको फॉरेंसिक ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी. देखो, टू सपोर्ट द ट्रायल एविडेंसेस. Yes, so these were the important questions with regards to forensic audit. And यहाँ पे all the important question of this chapter comes to an end. चल, तो let us start with question and answers of audit under automated environment. ठीक है, a very basic, easy chapter. Some international controls are also there. ये चैप्टर में क्या क्या सीखा? बेसिकली ये चैप्टर में हम लोगों ने रिस्क के बारे में जाना, ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में जाना, ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के प्रोसेसेस के बारे में जाना, कंट्रोल में वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स पढ़ लिए. तो ये सारा बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते. नाउ स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन, वेरी इजी, एकदम ही क्विकली खत्म करना हो जाएगा ये वाला. यू आर रिक्वायर्ड टू नेम द कंपोनेंट्स एंड एन एग्जाम्पल of real-time IT environment. I told you this was asked as an RTP question. 4 components हैं: network, middleware, hardware and application. Easy. Okay. Next. The audit cycle consists of planning, execution and completion. Okay. The automation and the processing of the business transactions and the consideration to be weighed by the auditor at every phase of its cycle. Okay, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो ऑडिट के हर फेज में ऑटोमेशन का कुछ ना कुछ तो तड़का है. Enumerates the focal points, some important points of such consideration when auditing in an automated environment. वो चार्ट याद आएगा, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड रिपोर्टिंग. सो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के टाइम पे भी हम लोग आईटी के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. सो एट ईच ऑडिट फेज ऑफ ऑडिट साइकिल वी विल नीड IT environment to be understood thoroughly.
So during the risk assessment procedures, auditor should also take care or assess the risk which are IT related, obtain an understanding of business policy as well as IT systems and the applications used, assessing the entity level controls, IT governances क्या है, pervasive controls कितने हैं, segregation of duty है कि नहीं है, टेस्टिंग फेज के टाइम पे जनरल IT कंट्रोल्स, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, रिपोर्टिंग, कंप्लीशन स्टेज पे इवैल्यूएटिंग डेफिशिएंसीज एंड रिपोर्टिंग अकॉर्डिंगली. Next is, in control based audit, the audit approach can be classified into three broad phases: planning, execution, completion. Same point. You are required to briefly explain at every stage हम लोगों को कैसा IT environment use करना. Almost the same answer. So risk assessment process, evaluation and understand and evaluate, testing and operating, and reporting cycle. Next. The volatility, unpredictability, the pace of the fast change that exists in the automated environment today is far greater than in past. बोलता है कि आजकल के ज़माने में business are evolving so much that it is throwing more risk to the business, and this is required to be managed. State various risks which an enterprise faces and they are managed. So these are the examples of risk. Very good. Business risk, marketing risk, operational risk, technological risk. These are the various risks. Project risk, credit risk, which the organization sees. Next. What are entity level controls? Explain what they pertain to. Give some examples. So entity level controls, direct entity level controls, direct and indirect ELC के बारे में जाना है. So direct ELC is control activity. Direct ELC is control activity. Indirect ELC is control environment. Indirect ELC is control environment. बस उसी चीज़ के बारे में लिखना है. For example, business performance, effectiveness. और indirect ELC में क्या आएगा? Motivation, job roles, code of conduct, etc. These are indirect ELC. Next, बोलता है briefly discuss the meaning of data analytics. Okay. Examples of the circumstances during which the automated environment, the auditor can apply the concepts of analytics. So what is analytics? Gain the information, analyze the information, try to find out where unusual activities are actually committed. So generating and preparing the meaningful information from the raw system using the processes, tools, techniques is known as data analytics. The data analytics method used in an audit is known as computer-assisted audit techniques. While auditing in an automated environment, the auditor can actually apply the several concepts of CAAT in this primary area: preliminary analytics, risk assessment, control testing, non-standardized journal entries, control deficiency, पूरा book में से fraud risk assessment. Next, you are required to suggest the approach which will benefit the use. Suggest the approach. ये RTP ये देखो December 21 में already पूछा हुआ question. Suggest the approach. Approach में जब भी पूछे understand the business, same to same. Understand the business, define the objective, determine the criteria, evaluate the objective against the criteria. What is the evaluation data? Extract the data, verify the completeness and accuracy. Validate the result. Next, give some examples of automated application-based controls. Examples of application-based controls are edit checks, validation checks, sequence numbering, user limit check, mandatory data fields, reasonableness check. That is application-based controls. Same to same. ये आने के चांसेस है गाइस, क्योंकि MTP में भी पूछा गया है, स्टडी मैट में भी पूछा गया है. तो दे विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन जनरल IT कंट्रोल, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल और IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल. इस पे आएगा क्वेश्चन. आई पर्सनली फील दिस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे भी देखो ऊपर सारा प्रवचन दिया है, फिर बोलता है कि डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है ये. यू आर ब्रीफली रिक्वायर्ड टू डिस्कस data analytics and the examples. So this is not the answer. Data analytics वाला आंसर लिखना है कि कौन से एरिया में आपको
ये क्योर कौन से एरियाज में आपको डेटा एनालिटिक्स करना है. दिस इज द आंसर. प्लीज रीचेंज इट. यहाँ पे लिखना डेटा एनालिटिक्स एंड उसके एरियाज लिखना है. नेक्स्ट, a company is using ERP for all its business processes including procurement, sales, finance, reporting. मतलब इतना समझो, this is an automated environment. You are required to explain the statutory auditor approach to identify the risk associated with IT system. मैंने वो जो स्टूडेंट्स नोट में लास्ट पॉइंट पढ़ाया, हाउ टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद IT सिस्टम, कैसे करेंगे आप लोग? These are the methods for evaluating internal control system. तो देखो, रिस्क मैंने आपको स्टूडेंट्स नोट में लास्ट में पढ़ाया था. अब यहाँ पे चेक करो कि what are the methods for evaluating internal control system. This is methods of evaluating internal control system. This is there in your chapter number 2. अब risk assessment and internal control क्या कहता है समझो. टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल में 4 टेक्निक्स है अपने पास. नरेटिव रिकॉर्ड्स, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर. ये 4 टेक्निक्स के अनुसार हम इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर सकते हैं. सो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था वो भी सेम था. बोलता है कि एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद IT एनवायरनमेंट. मतलब कैसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग IT कंट्रोल्स, IT रिस्क. तो देखो, सो इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव और द फ्लो चार्ट. सो हम लोग बिजनेस से ये आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज नरेटिव रिकॉर्ड्स. नरेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि हम मैनेजमेंट से नरेशन मंगवाएंगे, डिस्क्रिप्शन मंगवाएंगे अबाउट द ऑपरेशंस. चेकलिस्ट में एक्चुअली दिस इज आवर मेथड, ये ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आता है. सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से आती है, एज वेल एज क्वेश्चनर ऑर्गेनाइजेशन से आता है. सो यहाँ पे चेकलिस्ट में हम लोग हमारे ऑडिट टीम से बात करते हैं और ऑडिट एंगेजमेंट टीम को कहते हैं कि बेटा ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना. फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. क्वेश्चनर इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट विच इज गिवन टू द मैनेजमेंट एंड उसमें 3 कॉलम्स होते हैं जहाँ पे येस, नो, नॉट एप्लीकेबल हमारे मैनेजमेंट को लिख करके देना होता है. तो 4 प्रकार के मेथड होते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. So question to you is just similar to this concept. So answer में यही आएगा. The auditor should understand and document each of the business process in the form of narrative or the flow charts. The next process आपको identify करना है. यहाँ पे इस areas में you will be able to understand where the risk lies. Explain application based controls and general IT controls. So application based controls are meant specifically from specific applications. General IT controls ऐसे होते हैं which are supporting controls. Next, give some international internal control standards and guidelines. ये वाला पॉइंट हम लोगों ने एकदम ही एंड में पढ़ा था, पॉइंट नंबर 7 इन योर सार. सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था यस, सेक्शन नंबर 143 के हिसाब से IFCFR. इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आपको क्या क्या याद आता है? सार्बेन्स-ऑक्सले, इंग्लैंड एंड वेल्स, ISO, ITIL, PCI, SOC 1, SOC 2 and 3, कोबीट, कोको. तो जो भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में आपको इंटरनल कंट्रोल्स याद आ रहे हैं वो लिखना है. साइबर सिक्योरिटी. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. बोलता है कि हाउ विल यू अंडरस्टैंड योर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. सबसे पहला कंसेप्ट RTP का क्वेश्चन है. हेंस दिस इज हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. हाउ विल यू अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट. अंडरस्टैंड क्या करना है? एप्लीकेशन कौन सा यूज हो रहा है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लैन वैन का स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्टवेयर इन हाउस है या पैकेज्ड है, who is making the changes, what are the IT related risk and what are the controls, what is the overall organization का structure, who is the one who is governing the structure.
नेक्स्ट इज you are required to briefly explain the relevant consideration at each phase of audit. This is also स्टडी मटेरियल क्वेश्चन. तो यही लिखना है कि ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट फेज, वो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया ये रिस्क असेसमेंट फेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा चीज़. या द लास्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन बोलता है कि स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स यू वुड परफॉर्म टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट विसल ब्लोअर पॉलिसी. कोई भी पॉलिसी होने दो भाई, हम लोग क्या अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट करेंगे? वेदर द कंपनी हैज़ अ विसल ब्लोअर पॉलिसी, इज इट is the policy documented, approved, communicated, all employees are aware about the objectives, obligations, trainings are done, does the monitoring is done from time to time, does the company deals with deviations and non-compliances? So all these things are required to be checked. This is the answers of the important questions based on audit under automated environment. चलिए गाइज, आज हमें शुरू करना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फेवरेट चैप्टर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स. गाइज, इसका कंटेंट इज ऑलमोस्ट कवर्ड अंडर 315, 330. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कुछ इंटरनेशनल कंट्रोल्स के बारे में बात की. सो ये ऐसा वाला स्टैंडर्ड है, ये ऐसा वाला चैप्टर है जो काफ़ी सारी जगह पे फैला हुआ है. बट हाँ, क्वेश्चन आंसर्स देखना खूब ज़रूरी है, सो दैट वंस यू आर सीइंग द क्वेश्चन आंसर यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस इन इटसेल्फ कि ठीक है, ये चैप्टर मैनेजेबल है. ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's jump to the first very question. Your engagement team is seeking your advice from you as an engagement partner. Now the question starts. Regarding the steps for risk identification, elaborate कि कैसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करने वाले हो, इसके बारे में बताइए. So how will you identify or assess? So we will try assessing the significance of the assessed risk, determine the likelihood, that is frequency of the risk. We will try considering the impact of the risk on each and every components, each and every assertions, identifying the degree of significance of the risk कि कितनी तीव्रता से ये रिस्क इम्पैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. इंक्वायरिंग, डॉक्यूमेंटिंग, मैनेजमेंट से बात करो. हाउ कैन द कंपनी, हाउ आर द कंपनी, वेदर द कंपनी इज एबल टू मिटिगेट द रिस्क, ये सारा चीज़. कंसिडर एनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्क कि ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए है, फ्रॉड रिस्क के लिए है, कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के लिए है, कोई फॉरेन कंट्री ट्रांजैक्शंस के लिए कोई रिस्क है. तो दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क. Consider the existence of any particular inherent risk in any particular class of transactions. So what is inherent risk? This is the risk, this is a susceptibility of any potential assertion being misstated. ठीक है, सो इनहेरेंट रिस्क है क्या, ये वेरीफाई करना. एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट वेरीफाई द हाई वैल्यू इन्वेंट्री. अगर आपको लगता है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज वे टू हाई बट द साइज ऑफ इन्वेंट्री इज स्मॉल, तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है. तो दीज आर दी एग्जाम्पल. हाई वैल्यू इन्वेंट्री, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, एब्सेंस ऑफ पेपर ट्रेल, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल नहीं है, लार्ज परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन कमिंग फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर, सो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिस्क. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रिस्क असेसमेंट. ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड दिस इज असेसमेंट ऑफ द रिस्क. ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है यहाँ पे. इसके बाद आता है डिस्क्राइब briefly various stages of risk assessment process. So how will you assess the risk? पहला, there are 3 key steps. सबसे पहला assessing the risk of material misstatement, then designing the further audit procedure. See, रिस्क को हम लोग assess करके आइडेंटिफाई करके हाथ पे अधरे बैठे नहीं रह सकते. रिस्क को आइडेंटिफाई किया, असेस किया, उसके बाद we will be planning the further audit procedures and then the last step talks about issuing the audit report based on the findings. ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है गाइस. मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये है समझने में बहुत इजी, बट डायरेक्टली आपको ऐसा वाला आंसर आएगा ना तो यू विल जस्ट रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि यार इसमें क्या लिखना चाहिए हमें, ऐसा क्लिक नहीं होगा. हेंस मार्केट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स हाउ management identifies business risk relevant to the preparation of the financial statements in accordance with the entity's applicable financial reporting framework. Estimates with their significance, assess the likelihood of the occurrence and decide upon the action to respond to and manage them. ठीक है, ये सब प्रवचन. मेन क्वेश्चन क्या आता है? elucidate the circumstances in which the risk कैन अराइज और चेंज. मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें रिस्क अराइज हो सकता है या चेंज हो सकता है. दिस इज एज गुड एज
आपने गोइंग कंसर्न के केस में FOO ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स पढ़े, बस ऐसा वाला ही आंसर आएगा कि रिस्क कैसे हो सकता है या कैसे चेंज हो सकता है. सो दैट इज बेस्ड ऑन चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, चेंज इन लाइक न्यू पर्सनल्स आर added, recruited in the organizations, information system is being revamped, rapid growth, technological change, new technology, new business model, complex business transaction, corporate restructuring हुआ है, expansion, new accounting policies, new accounting pronouncements are issued, development in economic scenarios. So ये सारी चीज़ों के वजह से हो सकता है कि there is increase or there is change in the risk. ठीक है, मार्केट इंपॉर्टेंट एज वेल. इस चैप्टर के आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट. New Life Hospital is multi-speciality hospital which has been facing lots of pilferage and troubles regarding their inventory maintenance and control. On investigation into their matters, it was found that the person in charge of inventory inflow and outflow from the storehouse is also responsible for the purchase and maintenance of record. The major element which is missing is segregation of duty. है ना, कि जो पर्सन गुड्स लेकर के आता है वही पर्सन गुड्स को मेंटेन कर रहा है स्टॉक में. अकॉर्डिंग टू यू विच बेसिस सिस्टम ऑफ कंट्रोल इज वायलेटेड? segregation of duties. Okay. Also advise the other general conditions pertaining to such systems which needs to be maintained and checked. The most important area in this chapter, this question कि general conditions कौन सी है which are required to be checked and maintained, ये वाला चीज़ अलग अलग सिनेरियो में ऐड करके दिया है. सो यहाँ पे देखने जाए तो बच्चों दो प्रकार के क्वेश्चन है कि करंट सिनेरियो में कौन सा बेसिस ऑफ कंट्रोल मिस हुआ है, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, पहला क्वेश्चन. एंड दूसरा क्वेश्चन है ये जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू सच सिस्टम, सच इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इसको तो बाय हार्ट कर ही लो, एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो व्हाट आर द जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? के मैंडेटरी वेकेशन करवाओ, हो सकता है जितना पॉसिबल है उतना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करवाओ, जितना पॉसिबल है उतना ओवरव्यू, सुपरविजन, TCWG, गवर्नेंस करवाओ. ये देखो हम लोग बोलेंगे कि बॉस यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज वायलेटेड. सो इंटरनल कंट्रोल में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज प्राइमरी, मेकर चेकर कंसेप्ट जो है वो वायलेट हुआ है. अब general conditions, that is the second answer. General conditions pertaining to internal check system may be summarized as follows. No single person should have complete control over start to end of an operation. Staff duties must be rotated. Every members mandatory vacation करवाओ, बोलो कि एटलीस्ट साल में एक बार छुट्टी पे जाओ. इंडिया में कुछ अलग होता है, इंडिया में हम लोग छुट्टी वाला कंसेप्ट ही नहीं है ना. सो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सेज कि मैंडेटरी वेकेशंस करवाओ. फिजिकल कस्टडी जो पर्सन के पास है उसको रिकॉर्ड कीपिंग का एक्सेसिबिलिटी मत दो. नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग कंट्रोल्स है कि नहीं है ये वेरीफाई करो. मैकेनिकल डिवाइस शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश. बजटरी कंट्रोल्स फॉर इन्वेंट्री टेकिंग, एवरी टाइम ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंटिंग, इन्वेंट्री टेकिंग होना चाहिए. Financial and administrative power should be appropriately distributed to the person who all are responsible to handle it. Judicially आपको डिफर करना है ये. Procedure should be laid down for periodical verification for testing of different sections amounting the records to ensure they are accurate. ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आई एम वेरी 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 श्योर दैट ये वाला क्वेश्चन आपने मॉड्यूल में देखा होगा ना. तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीज़ों के केस में ये लास्ट लाइन ऐड करके दे देते हैं. तो केस चाहे चेंज करे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टोरी चाहे जितनी भी चेंज करे, लास्ट लाइन अगर वो लोग पूछ रहे व्हाट आर द जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम, तो आपको यही 10 पॉइंट्स लिखने. क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द जनरल कंडीशंस विच आर पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम. सो मैंडेटरी वेकेशन, जॉब रोटेशन, सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटी, budgetary controls, administrative power, financial power, segregations of these power, judiciary segregations of these power. Next, in the use of standardization of internal control questionnaire, certain basic assumptions about the good internal control systems are taken into account. List down few of such assumption, कि ऐसे कुछ assumptions के बारे में आप हमें ज़रा बता दीजिए. So basic assumptions regarding the good internal control in standardization of internal control questionnaire, कि जब भी organization में auditor is planning to use the internal control questionnaire, तो वो क्या चीज़ें सोच करके रखता है, क्या चीज़ें assume करेगा वो.
वो ये अज्यूम करेगा सर्टन प्रोसीजर्स इन जनरल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली हमको जो इंटरनल कंट्रोल टाइम टेस्टेड अजम्पशन, हमको जो डेटा मिल रहा है वो रिलायबल होगा। Organizations are such that permits an extensive segregation of duty. Employees are concerned with accounting will not be assigned with custodial function, that is segregation SOD. हम लोग ये assume करेंगे when we will be taking out questionnaire, हम लोग ये assume करेंगे कि बॉस ऐसा तो होना ही चाहिए, ठीक है। No single person is entrusted to complete all the transactions. There always be some evidences to identify which person has accountability of the work who is involved in authorization and implementation. The work performed by each one is expected to come under the review of another. ये usual course में internal check system is inbuilt and there is appropriate proper documentation and recording of the transactions, ठीक है। So these are the basic assumptions when the auditor is going to use the questionnaire. समझे? Next. Prabhu Limited, a manufacturing concern, wants to develop internal control system. Okay, you are an expert in developing internal control system, hereby called to brief about the same. मतलब आपको an expert opinion देने के लिए बुलाया है. In the view of above, you are required to brief about the internal control system and inherent limitations of internal control. बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में क्या कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं। देखो, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या? आपने कंट्रोल्स रखे, बट क्या ये इंटरनल कंट्रोल्स आर गोइंग टू गिव यू 100% श्योरिटी? नहीं, देयर कैन बी चेंजेस या फिर मैनेजमेंट के जजमेंट्स एरोनियस हो सकते हैं, कल्यूजन हो सकता है कि मैंने कितना भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किया, मैंने बोला मिस्टर ए काम हैंडल करे, मिस्टर बी दूसरा काम हैंडल करे, मिस्टर सी तीसरा काम हैंडल करे, मिस्टर ए बी सी ने जुगलबंदी कर ली, कल्यूजन कर लिया। ये सारा सब कुछ होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? हियर यू गो। देखो, बोलते हैं मैनेजमेंट को कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा कम लग सकता है। मोस्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल डू नॉट इंटेंड टू डायरेक्ट एट द टू बी डायरेक्टेड एट द ट्रांजैक्शन ऑफ द यूजुअल नेचर। देखो, यूजुअल नेचर के ऊपर हमारा कंट्रोल्स है, बट अगर कोई अचानक से कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो जाए, उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था बिकॉज वो अनयूजुअल है, तो क्या मैंने कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट किया होगा? नहीं। देयर कैन बी पोटेंशियल एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज सर्कमवेंशन? बाईपासिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल है फिर भी कोई फायदे का नहीं है। Possibility that a person responsible for exercising internal control could abuse the responsibility. Management can override their power. Manipulation by the management in respect of estimations. Management can actually manipulate the judgments. So these are the inherent limitations. Next. XYZ Hospital Private Limited is engaged in running hospital of 200 beds since last 20 years. Revenue track of the hospital for last 3 years is as under: 2015-16, 16-17, 17-18. Hospital has its own pharmacy, lab, blood bank, radiology, general store. Its management suspects that leakage and theft are happening in the pharmacy, radiology, lab, etc. It seeks the advice of RST and company, the internal auditors of the company, as how it can institute or improvise internal control. सब प्रवचन क्वेश्चन क्या है? Management wants to understand the concepts and the components of internal control system in detail. अब wait, we all are very well aware that जहाँ पे वो लोग बोले components of internal control में we are rightly going to pinpoint CRISM, CRICM. बट हाँ, ये सारे के सारे पांचों के पांच कंपोनेंट्स नहीं लिखने हैं गाइस। यहाँ पे इन पांच में से कौन से कंपोनेंट आपको इस एरिया में लागू लग रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी, विच एरिया यू फील शुड बी वेरी एक्यूरेट इन ऑर्डर टू reduce theft, reduce pilferages, leakages from the ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सिर्फ क्रिज्म में से उन एलिमेंट्स के बारे में लिखना है, उन कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है जो यहाँ पे आपको रेलिवेंट लगता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, अगर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का रिक्रूटमेंट, सुपरविजन कुछ इस हिसाब से रखा है तो थेफ्ट, पिल्फरेजेस अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग सिस्टम। सो देखो,
थेफ्ट पिल्फरेजेस होने का सबसे मुख्य कारण है दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज लैकिंग अकाउंटिंग. Where your organization does not have appropriate system that how much goods you have in stock, how much goods you have already sold, how much goods should remain in your inventory. If you don't have proper records maintained, there are high chances कि यहाँ पे pilferages हो जाए. So that is accounting system, classification, appropriate summarization. Control procedures, nothing but control activity. That appropriate supervision, appropriate physical safeguards against inventory रखना. ठीक है. सो व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन दिस रिगार्ड्स द एक्सपर्ट कैन एडवाइस. दे आर 3: कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी एंड अकाउंटिंग सिस्टम. तो आपको शायद कंपोनेंट्स देख करके पूरा क्रिज्म याद आया होगा. CRICM: कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग. बट पांचों के पांच आपको लिखने नहीं थे. बेस्ड ऑन दैट केस जो रेलिवेंट कंपोनेंट्स है वही लिखने थे. नेक्स्ट, a newly qualified professional has received the first appointment as the auditor of a large company and is very much concerned about the effectiveness of the internal control and wants to assess and evaluate the control environment as a part of his audit program. Pravachan. Question falls like this. Towards achieving his goal, he seeks your help in knowing what are SOPs of assessment and evaluation of control. That how can we actually assess internal control, how can we evaluate internal control. ठीक है, this is recently asked December 21 question. SOPs को कैसे evaluate करें. So enterprise risk management, whether there is appropriate job rotation, segregation of duty है कि नहीं, job rotation in sensitive areas, delegation of financial power, and yeah, information technology controls है कि नहीं. So when you are bothered about internal control and you want to evaluate the internal control program of any organization, आपको ये 5 चीज़ें करनी होगी. What are the components? Abhi, this is a general question. What are the components of internal control? Obviously, we'll go for CRISM. CRICM. CRISM. ठीक है. Control environment, risk assessment, information communication, control activity and monitoring. Next, briefly explain the technique of evaluating internal control system. Wait, internal control system को evaluate करने के लिए we have 4 methodologies. सबसे पहला we have narrative records. दूसरा we have checklist. तीसरा we have internal control questionnaire. And fourth we have flow chart technique. So currently what they have asked you is कि what is the meaning of the word flow chart technique. Flow chart technique का मतलब होता है it is a graphical presentation of the controls in place where the organization has added some controls. So in this particular case हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक graphical presentation बनाएंगे which will give us a bird's eye view of the controls in place. This is very fast in as compared to any other methodology of collecting evidences for internal control. So this is flow chart technique for evaluation. So normally it draws the controls for the systems and the subsystems. It gives the bird's eye view of the system. So drawing flowchart is like, flowchart is a normally horizontal one in which the documents, activities are shown in a horizontal format. So this is flowchart technique. Next, the effectiveness, this is question number 10 of the chapter in the module. The effectiveness of the control cannot rise above the integrity and the ethical value of the people who creates, administers and monitor them. Mark it, super important question. Highly expected exam question. What is this question? I'll make you understand again. See, कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स में है हमारे पास कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड मॉनिटरिंग. वेरी वेल सेड, वेरी गुड. कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमारे पास इंटरनल सब कंपोनेंट्स हैं. व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट. वी से कि मैनेजमेंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, मैनेजमेंट खुद कितना एथिकल है, मैनेजमेंट ने TCWG ने कितना इन्वॉल्वमेंट शो किया है, हाउ दे आर हायरिंग पीपल, व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. ये सब आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर. सो कंट्रोल एनवायरनमेंट का सबसे पहला पॉइंट होता है कि यार मैं कितना भी कंट्रोल कह लूँ, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट इज़ नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड द पर्सन हु आर गोइंग टू मेक इट एंड मॉनिटर इट. मैंने कहा या टोटली अग्री, बस उसी को एक्सप्लेन करना.
सो यहाँ पे आप क्रिज्म के सी में से रिटेल क्वेश्चन सबसे पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो, सो हम लोग कहेंगे येस एब्सोल्युटली ट्रू, द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स विच यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट कैन नॉट राइज। अब देखो, आज मैंने कंट्रोल्स के नाम पे पूरा चिट्ठा पिट्ठा बना दिया, बट एथिकली वी आर इनकरेक्ट। अगर हम लोग एथिकली वी आर नॉट गुड पीपल, वी आर अनएथिकल पीपल, तो हम लोग कितने भी अच्छे कंट्रोल्स बना लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। So we will have to get it. So controls will not raise above the integrity or the ethical value of the people who creates, administer or monitor them. Integrity and the ethical behavior of the products of are the product of the entity's ethical behavior and the standard. If we are correct, we actually work in a manner जहाँ पे हम जनहित में जारी काम करते हैं. We never take undue advantages of anyone. We don't do illegal activities. We don't perform any unjust activity. So if we, being the TCWG, we being the top level management of the organization, the control environment will be strong. If we are such, हमारा control environment भी अच्छा रहेगा. ठीक है, चलो देखो, डिसऑनेस्ट, इलीगल, अनएथिकल एक्ट्स, ठीक है। अगर हम ही ऐसा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे एम्प्लॉइज विल बी टेम्प्टेड टू डू सच एक्ट्स, ठीक है। इफ वी आर वेरी वेरी गुड पीपल, वी आर एथिकल पीपल, so our employees will not be tempted to do such dishonest, illegal or unjust activities. Next, this is a good question basically. कहता है what are accounting controls? See, controls हमेशा रिस्क के ऊपर आता है ना। अगर रिस्क है तो उसके सामने ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल लेकर के आता है। अकाउंटिंग में रिस्क क्या हो सकता है? प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हुआ, प्रॉपर क्या कह सकते हैं, टाइमली क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं हुआ, ये सारा अकाउंटिंग रिस्क है. सो व्हाट आर अकाउंटिंग कंट्रोल्स? अकाउंटिंग कंट्रोल्स कैन बी, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल्स आर दैट all the transactions are appropriately recorded, they are real, they are properly valued, timely recorded, timely posted, timely classified, disclosed, properly classified, disclosed and summarized. Next, I'll just try showing this to you from SAR as well. Just wait for a moment. Yes. तो यहाँ भी यू कैन जस्ट सी अप इन द SAR जो भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ना, ये चैप्टर एक्चुअली विल बी मोर इजी व्हेन यू डू इट क्वेश्चन आंसर टाइप्स, क्योंकि कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम जो 315 330 में हम लोगों ने पढ़ रखा है. ठीक है, तो SAR में सी वी हैव कवर्ड अप ये जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 था अपने सवाल वाले बुक में. देन वी सॉ रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 सवाल में. रिस्पॉन्सेज टू रिस्क, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा. Structure of internal control, yeah, look at this. Objectives of accounting control. So objectives of accounting control is all the transactions are recorded, real, properly valued, properly posted, properly classified, properly summarized. ठीक है, okay. Then we had a word with regards to what are the key components of internal control. तो हम लोगों ने क्रिज्म वाली बात की, कंट्रोल, एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट. एंड उसमें आई टोल्ड यू देर आर सम इंटरनल पॉइंट जिस पे डिटेल क्वेश्चन आता है. तो लुक एट दिस, सार है तो सार पे टिक करते जाइए. कम्युनिकेशंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ द एथिकल वैल्यू, ये अभी हम लोग पढ़ करके है ना कि सी इंटरनल कंट्रोल विल नॉट राइज अप बियॉन्ड द एथिकल बिहेवियर ऑफ द पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग, मॉनिटरिंग और क्रिएटिंग, एडमिनिस्ट्रिंग और मॉनिटरिंग इट. तो उसका आंसर है यहाँ पे. ठीक है, हियर सी yes, हम लोग बोलेंगे effectiveness of the control cannot rise above the ethical and the integrity values of the people who create, administer or monitor them. So these are the primary things which we need to see. Then we also saw a question कि risk can arise due to the changes in following: operating environment, new personnel being added, information systems which are revamped, corporate restructuring, financial or foreign operations, etc. Then we had a word with regards to physical controls. ठीक है, special audit consideration when the risk is of fraud, complex transactions, these are the special audit considerations. Techniques of evaluating internal controls, मैंने अभी आपको 4 चीज़ें बोली: नरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट, क्वेश्चनर. क्वेश्चनर में मैंने वो वाला पार्ट बताया कि what are the basic assumptions when the auditor is going to use internal control questionnaire. So these are the basic assumptions. ये है 265 का आंसर
कि हम लोग जब इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू TCWG एज पर ऐसे 265 इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी में हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, हमारा पर्पस लिखेंगे, कंसिडरेशन, वी विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर ऑडिट, वी विल एक्सप्लेन हाउ हैव वी कंसिडर्ड इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज द डिज़ाइन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हमारा काम ऑडिट करना है, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज को डिटेक्ट करना नहीं है, बट हाँ ये कुछ चीज़ें सामने आई है तो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये बताना, ठीक है। सो दैट वाज 265, ये इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये वाला पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम, वो 10 पॉइंट। आगे स्टोरी कुछ और दे सकते हैं, जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम में वो लोग को आंसर मांगना होगा, तो वो लोग सेम लास्ट लाइन मार्क कर सकते हैं और आपको 10 पॉइंट लिखना है कि नो सिंगल पर्सन हैज़ ऑल द कंट्रोल ओवर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, स्टाफ रोटेशन, मैंडेटरी वेकेशन, फिजिकल कस्टडी, एक्सेस ऑफ बुक्स नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग कंट्रोल्स होना चाहिए, फिजिकल सेफगार्ड्स, मैकेनिकल डिवाइसेस होने चाहिए टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, बजटरी कंट्रोल्स होने चाहिए, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चेंज हो जाने चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर एंड दीज आर इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल्स, सार्बन-ऑक्सले एंड या ये लास्ट वाला पॉइंट विच वॉज आस्क्ड इन December 21 दैट इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट्स एंड देयर इवैल्यूएशन, अभी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पढ़ा, इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड देयर इवैल्यूएशन, कहाँ गया ये, यस। सो इंटरनल कंट्रोल एंड देयर इवैल्यूएशन, उसमें क्या क्या आएगा, 5 चीज़ें, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोटेशन, डेलीगेशंस एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज बेटर डन इन अ क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब आगे, या क्वेश्चन नंबर 14, यू आर द ऑडिटर ऑफ स्मॉल बैंक ब्रांच, ये बैंक ऑडिट में भी सेम क्वेश्चन कर लिया, जहाँ पे एक ही मतलब 3-4 स्टाफ है, एक प्यून है जो मेटिकुलसली सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, एक और पर्सनल स्टाफ है जो साइन वगैरह चेक कर लेता है, लोगों को फॉर्म्स वगैरह दे देता है, खुद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी कर लेता है। आपने मैनेजमेंट को जाकर के पूछा सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, मैनेजमेंट ने कहा कि क्या करे सर, मंदी चल रही है, स्टाफ की कमी चल रही है, इसके लिए सारा का सारा काम हमारा वॉचमैन, प्यून ये सभी देखते हैं। बोलो इसमें क्या चीज़ मिसिंग लग रही है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। हम लोग बोलेंगे कि कम ऑन, यू कैन नॉट गिव अ रीज़न कि हमारे पास स्टाफ नहीं है एंड हेंस यू आर नॉट मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल, एंड बैंक बीइंग सो क्रूशियल, बैंक बीइंग सो सब्जेक्ट टू फ्रॉड, प्रोन टू फ्रॉड, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल तो होना ही चाहिए। सो ऑडिटर शुड रिपोर्ट दिस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। एंड हाँ यहाँ पे देखो, एक तो पहले वो लोग बोल रहे हैं एज एन ऑडिटर यू ब्रीफली गाइड अबाउट द जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम, जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू, आई टोल्ड यू, आगे प्रवचन देंगे फिर बोलेंगे बताओ जरा व्हाट आर द जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम, वो 10 पॉइंट याद आया, यस, ठीक है। So no single person should have complete control over any one of the important aspects of the business. Job rotation should be encouraged, mandatory vacation should be done, accounting control should be there, physical devices monitoring, budgetary control should be there, cash का misappropriation रोका जाना चाहिए, ठीक है। So that should be the answer. Next is internal control framework में सबसे पहला question which they ask is what are the objectives, the category of the objectives and the components of internal controls as per COSO committee. What is COSO? Committee of Tradeway Commission, Committee of Sponsoring Organization for Tradeway Commission. So objectives remaining same, basically what we have is we want to have operational, reporting and compliance objective, and दूसरा components being same, this is CRICM, components of internal control as per COSO is CRISM. Next, accounting control system, this is your study mat question which was
डायरेक्टली आस्क्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर्स, डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से उठा करके क्वेश्चन पूछा था कि अकाउंटिंग कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैंने अभी अभी बोला दैट अकाउंटिंग में रिस्क क्या होता है कि सारा ट्रांजैक्शन रियल ना हो, फेक हो, बुक एंट्री सही ना हो, प्रॉपरली वैल्यूड ना हो, प्रॉपरली क्लासीफाइड ना हो, है ना। उसी के सामने कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए सच दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर recorded, they are real, properly valued, recorded timely, posted properly, properly classified and properly summarized. Same question है, homework है ये। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम SM स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जो अभी अभी ऊपर हम लोग देख करके दिसंबर 21 में एज इट इज कंट्रोल C कंट्रोल भी पूछ लिया था। आई पर्सनली फील वो जनरल कंट्रोल्स के ऊपर, जनरल पॉइंटर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है एंड इतने ही टाइम RTP में घूम चुका है बट क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। हाई चांसेस May 22 में आ जाए। दिस इज ऑल्सो सेम। टुडेज होमवर्क इज दिस। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू इवेल्युएट कंट्रोल एनवायरमेंट and guide CA Prasad with a well-defined set of SOPs in assessment and evaluation of control. Done? Yes. So there you complete all the important relevant questions from the study material RTP and MTP of risk assessment and internal controls. ठीक है? So that is all for the current session. All the very best, guys.